and visual presentation of data. So as far as tabular presentation of data is concerned, we generally talk about preparation of distribution table, frequency distribution table that we learned yesterday, how to compute frequencies and how to generate frequency distribution table of the variables under consideration. And at the same time, yesterday we did with the preparation of some graphs. We prepared a pie chart, the entry level chart, you can say. Along with that, the simple bar graph we prepared yesterday, and your multiple bar chart or joint bar chart we have learned how to compute. And today onwards, we'll be focusing on the second basket in statistics, which is called as inferential statistics. And from layman's viewpoint, what is inferential statistics? So it basically deals with the hypothesis testing part. So today we'll be having discussions on the first level of analysis, which comes under inferential analysis, which reads as univariate analysis. Before getting into it, I'm just acquainting you with the flow of today's presentation. I have configured my today's presentation in these particular apparent sections, as you can read. At the outset, we'll try to compute Cronspach alpha using SPSS software, which is considered as a reliability measure. Then in the second section, we will understand the framework of inferential analysis. जैसे मैंने आपको डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस का फ्रेमवर्क बताया था, वैसे ही इन्फरेंशियल एनालिसिस यानी क्या और उसमें कौन सी बास्केट्स आती है, कौन से टूल्स आते हैं. We'll just try to take a look over it. Then in the third part, we'll try to compute the first inferential analysis, that is what is called as computation of confidence interval using SPSS. Then we'll perform test of normality. We are going to perform 3 tests over here. And then we will perform hypothesis testing, which is called as the univariate t-test. So this is what is being lined up for today's discussion. Now I'm starting my discussions with this part, computation of Cronspach alpha. So Cronspach alpha is a measure of reliability. You might have heard of the concept of validity and reliability testing. Validity and reliability testing. It is validity testing. So it is itself a topic of comprehensive discussions, but we are actually discussing the computation of Cronspach alpha. इसको मुझे कम से कम 1.5 घंटा लगता है कॉम्प्रहेंसिवली एक्सप्लेन करने के लिए. और बेसिकली ये जो पार्ट है, हम लोग जब स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग करते हैं, जिसको सेम कहते हैं, उस वक्त कॉम्प्रहेंसिवली हम लोगों को इसमें डील करना होता है. वैलिडिटी टेस्टिंग में बहुत सारी मेथड्स है और रिलायबिलिटी टेस्टिंग की भी बहुत सारी मेथड्स है. और उसमें से जो एक सबसे इंपॉर्टेंट है हम लोगों को जिसका कंप्यूटेशन करना होता है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज Cronspach alpha. Cronspach alpha. This is a measure of reliability. What is the difference between validity and reliability? Firstly, we'll try to understand कि ये concept क्या है और कौन से स्टेज पे अप्लाई होता है. वैलिडिटी और रिलायबिलिटी टेस्टिंग हम लोग करते हैं हमारे सर्वे फॉर्म का. हमने जो क्वेश्चनर बनाया हुआ है, उस क्वेश्चनर की हम वैलिडिटी और रिलायबिलिटी टेस्टिंग करते हैं. ये कैसे करेंगे? तो हमने जो सर्वे से डेटा जनरेट किया हुआ है, वो डेटा यूज करके वैलिडिटी और रिलायबिलिटी टेस्टिंग की जाती है. फर्क समझने की कोशिश करते हैं वैलिडिटी और रिलायबिलिटी में क्या है. मैं बहुत ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, जस्ट मैं कंसेप्ट समझा रहा हूँ और सीधा जाएंगे फिर Cronspach अल्फा के कंप्यूटेशन में. और मैंने ये आपको प्रॉमिस किया था, पर ब्रोशर में आप देखेंगे नहीं इसका मेंशन. पर जब हम लोग डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का रिपोर्टिंग करते हैं तो उसमें Cronspach अल्फा भी रिपोर्ट करना होता है, इसलिए मैं ये मेरी तरफ से बोनस समझ लीजिए. ओके, तो मैं समझा रहा था आपको कि हम लोग जो क्वेश्चनर तैयार करते हैं उसकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी टेस्टिंग करनी होती है. Validity deals with the issue of whether your instrument
is measuring what it sets out to measure. थोड़ा आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। हम लोग कुछ कंस्ट्रक्ट्स पे काम करते हैं, जैसे हम लोग कल डिस्कशंस कर रहे थे कि कंज्यूमर एटीट्यूड, कंज्यूमर परसेप्शन, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। हम लोगों में से ही एक पार्टिसिपेंट इमोशनल इंटेलिजेंस यानी ईआई या फिर ईक्यू कहिए आप, ईक्यू मेजर करने की कोशिश हो रही है। जॉब स्ट्रेस या ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस की बात होती है, कस्टमर लॉयल्टी की बात होती है। इन सब को हम लोग रिसर्च में जनरली कंस्ट्रक्ट्स कहते हैं। और हर एक कंस्ट्रक्ट्स में हम मल्टीपल आइटम्स या मल्टीपल स्टेटमेंट्स पे रेस्पॉन्सेज जनरेट करते हैं। जैसे कंज्यूमर एटीट्यूड के लिए मैं 1 2 3 4 5, ये सपोज 5 स्टेटमेंट्स में पूछ रहा हूँ और मेरा स्केल है 5 पॉइंट। स्ट्रांगली डिसएग्री, न्यूट्रल, एग्री, स्ट्रांगली एग्री। इस प्रकार से मैंने एक स्केल तैयार किया है। तो ये कंज्यूमर एटीट्यूड की स्केल है। ये स्केल का मैं वैलिडिटी टेस्टिंग कर रहा हूँ, यानी क्या, मैंने ये जो 5 इंडिकेटर्स यूज किए हैं कंज्यूमर एटीट्यूड को मेजर करने के लिए, क्या ये 5 आइटम्स या इंडिकेटर्स कंज्यूमर एटीट्यूड को ही मेजर कर रहे हैं या और कुछ मेजर कर रहे हैं? ये जानने की जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं वैलिडिटी टेस्टिंग। और रिलायबिलिटी टेस्टिंग इज अबाउट रिपीटेबिलिटी। It is about the trustworthiness of your questionnaire. ट्रस्टवर्दीनेस, क्रेडिट वर्दीनेस आप बोल सकते हैं योर क्वेश्चनर। व्हाट डज दिस मीन? एक आम आदमी की भाषा में, अगर आप आपका क्वेश्चनर आपके रेस्पोंडेंट्स पे रिपीटेटिवली अगर एडमिनिस्टर करते हो तो क्या रिस्पॉन्सेस सेम आएंगे? जैसे सिंप्लीफाई, जस्ट टू सिंप्लीफाई द थिंग्स, इफ सपोज एक वेइंग मशीन है जो आप आपका वेट मेजर करने के लिए यूज कर रहे हो। ओके, आपने एक बार वो पर्टिकुलर मशीन से, वेइंग मशीन से आपका खुद का वेट मेजर किया, वो आया W1 एंड इफ सपोज इट इज 47, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल। फिर आपने उसी मशीन से वेट किया, ओके, उसी मोमेंट या एक छोटा सा पॉज लेके ये आया W2, और फिर आपने उसी मशीन से आपका वेट तीसरी बार किया। तो क्या ये वेट हर बार सेम आ रहा है? जब आप एक ही इंस्ट्रूमेंट रिपीटेटिवली यूज कर रहे हो तो ये आइडियली सेम ही आना चाहिए, अदरवाइज हम क्या बोलेंगे कि दिस मशीन इज नॉट रिलायबल। Getting me? And when we test the reliability of our questionnaire, actually we are endorsing that after repetitive measurements, our questionnaire is reliable. It is trustworthy. Okay, so this is the difference। और reliability के और validity के कुछ measures है, उसके डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ बात करते हैं क्रॉन्सबैक अल्फा, जो बहुत ही ज्यादा वाइडली यूज्ड मेजर बोल सकते हैं हम लोग। इसके और मेजर एक मैकडोनल्ड्स ओमेगा भी आजकल चलता है, पर एसपीएसएस में अल्फा का फंक्शन है, एक गटमैन का होता है, और बाकी भी मेजर्स है, पर अल्फा इज द मोस्ट कॉमनली रिपोर्टेड मेजर। आप अगर रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ रहे होंगे तो आपको हमेशा क्रॉन्सबैक अल्फा का रिपोर्टिंग ही दिखेगा। सो इट इज वेरी पॉपुलर। और और एसपीएसएस के सॉफ्टवेयर में जस्ट ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में मेजर हो जाता है। अभी बात करते हैं कि क्रॉन्सबैक अल्फा किसका मेजर करते हैं। तो जब आप लिकर्ट स्केल का डेटा यूज कर रहे हो, आप कोई कंस्ट्रक्ट्स मेजर कर रहे हो और आपके पास लिकर्ट स्केल का डेटा है, जैसे आपका स्ट्रांगली डिसएग्री, न्यूट्रल, एग्री, स्ट्रांगली एग्री, और यहाँ है आपके पास मल्टीपल स्टेटमेंट्स। अगर आपके पास इस तरीके से क्वेश्चनर है, जरूरी नहीं कि स्ट्रांगली डिसएग्री वगैरह हो सकता है वेरी पुअर, पुअर, एवरेज, बाद में गुड, वेरी गुड।
इन टर्म्स ऑफ अवेयरनेस आपने अगर बनाया नॉट सो अवेयर, है ना, मॉडरेटली अवेयर, ऐसा 5 पॉइंट आपने बनाया है, तो भी आपके अगर ऐसे स्टेटमेंट्स है और उस पे आप ऐसे 5.7 पॉइंट पे रिस्पॉन्सेस जनरेट कर रहे हो, तो उस वक्त हम जनरली क्रॉन्सपेक्ट अल्फा यूज करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जब आपके पास लिकर्ट स्केल का डेटा है तो उस वक्त हम लोग उस पर्टिकुलर क्वेश्चन है, इसको स्केल कहते हैं हम लोग एक्चुअली, एक पर्टिकुलर कंस्ट्रक्ट की स्केल, इसका हम लोग रिलायबिलिटी का मेजर क्रॉन्सपेक्ट अल्फा कंप्यूट करते हैं। अभी ये कब कंप्यूट करते हैं, तो ऑब्वियसली आपका सर्वे पूरा हो चुका है, you have finished up with your data collection part and you have got data available with you, and then you typically perform the analysis of computation of Kronspec alpha. देखिए, कल जो मैं आपको बता रहा था कि मैं एक स्लाइड आपको आज के सेशन में दिखाऊंगा, जिसमें बात हो रही थी कि हम लोग जो कल के कंप्यूटेशन हमने किए थे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और परसेंटेजेस का, आपको याद होगा, तो मैंने कल आपको एश्योर किया था कि मैं आज के मेरे सेशन में आपको एक स्लाइड दिखा दूंगा जिससे पता चल जाएगा कि रिपोर्टिंग कैसे करते हैं फ्रीक्वेंसीज का और परसेंटेजेस का। जनरली हमारे पास जो सर्वे फॉर्म होता है उसमें हम लोग सोशियो डेमोग्राफिक और इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स पे डेटा कलेक्ट करते हैं, और आपका रिसर्च आर्टिकल हो या आपका थीसिस हो, उसमें जनरली हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं हमारे डेमोग्राफिक वेरिएबल, डेमोग्राफिक हो, सोशियो डेमोग्राफिक हो या फिर इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स हो, इनका रिपोर्टिंग करते ही है। और इस तरीके का एक चार्ट हम लोगों को तैयार करना होता है, एंड यू विल फाइंड सच काइंड ऑफ चार्ट इन एनी ऑफ द आर्टिकल्स व्हिच आर पब्लिश्ड इन हाई क्वालिटी जर्नल्स। इज अ प्रिटी कॉमन थिंग। ओके, तो हम लोगों ने कल जो सीखा था उसका रिपोर्टिंग मैं आज बता रहा हूँ। ये मेरा ही एक रिसर्च पेपर है जिसमें हमने ये रिसेंटली कंप्यूटेशंस किए थे। एज यू कैन सी दीस आर माय वेरिएबल्स, और वेरिएबल पे मैंने कैटेगरीज कौन सी ली है, ये सब नॉमिनल वेरिएबल्स है एज यू कैन सी। तो जेंडर, मेल फीमेल कॉन्फ़िगरेशन और उसका टोटल सैंपल साइज आप देख सकते हैं, मेल 446 और फीमेल 239, और उसका रिस्पेक्टिव परसेंटेजेस। So such kind of charts we are supposed to prepare, and we are supposed to report. All these are your socio-demographic and economic variables you can see. और इसका जनरली टाइटल मैंने तो यहाँ प्रोफाइल ऑफ द सैंपल्स लिखा है, और इसको सैंपल कैरेक्टरिस्टिक, ये भी एक वर्ड यूज होता है रिपोर्टिंग के वक्त, सैंपल कैरेक्टरिस्टिक्स। चलिए बात करते हैं क्रॉन्सबैक अल्फा की। तो आपको शायद याद होगा, ये स्लाइड मैंने मेरे डे 1 के सेशन में भी आपके साथ डिस्कस की थी। आप जैसे देख सकते हो मेरे वेरिएबल्स है, ये भी चार्ट बनाना और रिपोर्ट करना कंपलसरी है जब भी आप इंपेरिकल रिसर्च आर्टिकल्स तैयार कर रहे हो या थीसिस के लिए काम कर रहे हो। आप जैसे देख रहे हो कि मेरे वेरिएबल्स कितने हैं, ये सब कंस्ट्रक्ट्स है। वन इज एटीट्यूड टुवर्ड्स ऑनलाइन शॉपिंग, सेकंड इज सब्जेक्टिव नॉर्म, थर्ड वन इज परसीव्ड बिहेवियरल कंट्रोल, एंड फोर्थ वन इज इंटेंशन टू शॉप ऑनलाइन। और इसके रिस्पेक्टिव आप आइटम्स देख सकते हो, और इनके रिस्पेक्टिव ये पूरे के पूरे कंस्ट्रक्ट का एवरेज आया है 4, और उसका रिस्पेक्टिव स्टैंडर्ड डेविएशन ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पे हम लोगों को क्रॉन्सबैक अल्फा का रिपोर्टिंग करना होता है। तो ये मैंने आपको पढ़ा दिया था, और ये टेबल तो बनाना ही है आपको अगर आप इंपेरिकल आर्टिकल लिख रहे हो और कंस्ट्रक्ट्स पे काम कर रहे हो। तो हम लोगों को सिर्फ अभी रह गया है ये टेबल बनाते वक्त ये अल्फा कैसे कंप्यूट करते हैं। तो मैं क्विकली आपको बता देता हूँ। ये कुछ कमांड्स है, एनालाइज में जाएंगे, उसके बाद स्केल, फिर रिलायबिलिटी एनालिसिस में डायरेक्टली आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा देता हूँ। मेरे पास एक फाइल है, ओपन कर लेते हैं। ओके, वेरिएबल व्यू चेक करेंगे। आप जैसे देख पा रहे हो ये AW1 यानी अवेयरनेस 1, अवेयरनेस सेकंड आइटम, अवेयरनेस का तीसरा आइटम, अवेयरनेस का फोर्थ आइटम, अवेयरनेस फिफ्थ आइटम। ये दिख रहा है अवेयरनेस, ये कंस्ट्रक्ट मेजर करने के लिए मैं 5 इंडिकेटर्स यूज कर रहा हूँ। और मेरा दूसरा कंस्ट्रक्ट है एटीट्यूड। ओके, ये एटीट्यूड 1, एटीट्यूड 2, एटीट्यूड 3, एटीट्यूड 4, एटीट्यूड 5, एटीट्यूड 6, एटीट्यूड 7 और एटीट्यूड 8। यानी एटीट्यूड मेजर करने के लिए मैं ये 8 इंडिकेटर्स या स्टेटमेंट्स यूज कर रहा हूँ। अभी आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे मेजर मैंने स्केल क्यों लिया है। We have not considered this data as nominal data.
because we have converted this particular data into respective codes. Now the data is available with us in numeric sense, as you can see. All this is coded data, and this is actually, as you can see, एक paper में हमने ये use किया था. Okay, as you can see. Okay, this is your coded data, and it is numerical data. That is why I have set a measure as a scale over here, and values I didn't define because I'm considering it as a scale variable. तो यहाँ values कब define करते हैं जब आपके पास ये पर्टिकुलर डेटा जो है ये नॉमिनल स्केल का होता है, तब वैल्यूज डिफाइन करता है. लेबल मैंने यहाँ आइटम्स कॉपी पेस्ट नहीं किए हैं, डजंट मैटर, आउटपुट ऐसे आएगा इस तरीके से. चलिए परफॉर्म करते हैं. ये दो कंस्ट्रक्ट्स के लिए क्रॉन्सपैक अल्फा क्या आ रहा है. एनालाइज में जाएंगे और फिर स्केल और फिर रिलायबिलिटी एनालिसिस. इसमें हम लोगों का कंस्ट्रक्ट वन है अवेयरनेस. इसको मैंने पांचों आइटम्स जो है मेरे उसको इस तरफ ट्रांसफर कर लिया. और आप देखेंगे मॉडल यानी हमारा मेजर क्या है. बाय डिफॉल्ट सेटिंग यहाँ पे क्रॉन्सपैक अल्फा का ही होता है जो हमको कंप्यूट करना है. अपार्ट फ्रॉम दैट अल्फा के साथ साथ हमारे पास ऑप्शंस क्या है, तो स्प्लिट हाफ या रिलायबिलिटी का एक मेजर होता है. बहुत सारी स्टैंडर्डाइज स्केल्स में आपको दिखेगा कि रिपोर्टिंग होता है स्प्लिट हाफ का. उसके बाद गटमैन पैरेलल फॉर्म या इसको ऑल्टरनेट फॉर्म कहते हैं, और उसके बाद स्ट्रिक्ट पैरेलल. ये 5 मेथड्स है इसमें एसपीएसएस में, पर हम लोग अल्फा का ही अभी कंप्यूटेशन कर रहे हैं. इसको कुछ नहीं, आपको सिंपली ओके प्रेस करना है. आप देखेंगे यहाँ पे केस प्रोसेसिंग समरी आ चुकी है. हमारा सैंपल साइज 434 का है और हमारी मिसिंग वैल्यूज जो है वो 0 है और टोटल सैंपल साइज 434 का है. और आप देख रहे हैं यहाँ पे रिलायबिलिटी स्टैटिस्टिक्स. नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, तो 5 आइटम्स है हमारे एटीट्यूड की स्केल में, और क्रॉन्सबैक अल्फा आया है 0.855. इसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे. दिस क्रॉन्सबैक अल्फा शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन एटलीस्ट 0.7, सॉरी इज 0.7, इट शुड बी ग्रेटर देन 0.7. ओके, और जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे 0.855 क्रॉन्सबैक अल्फा आया है, यानी हमारा जो स्केल है एट अवेयरनेस का वो रिलायबल है. इट इज परफेक्ट. कुछ जगह पे ये 0.6 तक आता है तो भी चल जाता है कुछ जगह पे. हाँ, पर जनरली एक स्टैंडर्ड मेजर आप कहीं पे भी पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि एक बेंचमार्क या थ्रेशोल्ड जिसको कहते हैं, दैट थ्रेशोल्ड इज टिपिकली 0.7 के ऊपर अगर अल्फा है तो पेपर एक्सेप्ट हो जाता है जर्नल में. दूसरा हमारे पास और एक कंस्ट्रक्ट है, उसका भी कंप्यूटेशन करके देख लेते हैं. इसको हमारा स्केल, रिलायबिलिटी एनालिसिस, इन सबको वापस लेके आ जाएंगे. अभी इनका काम हो चुका है अवेयरनेस का. और एटीट्यूड को लेके जाते हैं. पूरे 8 इंडिकेटर्स आपके 2 3 4 5 6 7 8 है, और कुछ भी नहीं. यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स में आप देख सकते हो मीन मोड मीडियन ये सब आपको चाहिए तो ये आप यहाँ से ले सकते हो, पर मैं फिलहाल नहीं निकाल रहा हूँ. मुझे सिर्फ अल्फा निकालना है. और यहाँ पे स्केल का लेबल दे देंगे, ये है कंज्यूमर एटीट्यूड. कंज्यूमर एटीट्यूड ओके. प्रेस कर रहा हूँ मैं. एज यू कैन सी अभी यहाँ पे लेबल भी आ चुका है कंज्यूमर एटीट्यूड. यहाँ पे केस प्रोसेसिंग समरी सैंपल साइज 434 का है, और क्रॉन्सबैक अल्फा जैसे आप देख सकते हो 0.909 विच इज ग्रेटर देन 0.7. तो बहुत अच्छा माना जाता है ये क्रॉन्सबैक अल्फा, यानी हमारा क्वेश्चनियर जो है वो स्टैंडर्डाइज हो चुका है, यानी वो रिलायबल है ऐसा बोल सकते हैं. और नंबर ऑफ इंडिकेटर्स कितने हैं, तो 8 आइटम्स हमने कंसिडर किए हैं. So this is about the computation of Cronspec alpha using SPSS software. Now we are moving into the second section. Now we'll just try to understand the framework of inferential statistics. What is inferential statistics? I'm just trying to explain you the concept of inferential statistics with the help of this particular beautiful picture. ये हमारे साथ हमेशा यानी डेली लाइफ का ही एग्जाम्पल मैं कंसिडर कर रहा हूँ ये कंसेप्ट समझाने के लिए. देखिए हम लोगों को एक 50 केजी का सैक परचेस करना, ये व्हीट है जिसमें 50 केजी का व्हीट का एक सैक हमको परचेस करना है. तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, ये पूरे के पूरे 50 केजी जो है व्हीट के ग्रेन्स, इसको हम लोग एग्जामिन नहीं करते. एक एक दाना थोड़ी ना एग्जामिन करते हैं. व्हाट डू वी टिपिकली डू,
we take out a handful of mass out of this lot, and we generally examine this handful of lot. Now, in statistics sense, what is this 50 kg? This is considered as a target population under consideration. And what is this handful of mass? It is called as a sample. And what exactly we are doing? We are actually trying to investigate the quality of this 50 kg, this 50 kg weight. 50 किलो गेहूं की क्वालिटी क्या है ये जानने की कोशिश हो रही है, और हम लोगों ने इसमें से ही एक लगभग 50 ग्राम हो सकता है, ये 50 ग्राम का सैंपल वी हैव इन्वेस्टिगेटेड एंड वी हैव इन्फर्ड अबाउट द क्वालिटी ऑफ दिस 50 केजी, नॉट दिस 50 ग्राम। यानी ये 50 केजी गेहूं अच्छा है कि बुरा है, इसको परचेस करना है कि नहीं करना है, ये डिसीजन फॉर्म करने के लिए हम लोगों ने एक छोटा सा लॉट इसमें से निकाला जिसको सैंपल कहते हैं, और उसी को इन्वेस्टिगेट किया, और फिर इसकी क्वालिटी को स्टडी करने के बाद, इन्वेस्टिगेट करने के बाद हमने बोला कि इसकी क्वालिटी क्या है 50 किलो की। और जनरली हमारे सर्वे बेस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट में हम लोग ऐसा ही तो करते हैं। हमारे पास दो कॉन्सेप्ट्स है, एक है टारगेट पॉपुलेशन, आप किसका सर्वे कर रहे हैं। जैसे कल एक मैम मेरे साथ इंटरेक्ट कर रही थी इमोशनल इंटेलिजेंस पे जिनका काम चल रहा है, और वो शायद स्टूडेंट्स का सर्वे कर रही, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स okay is considered as your target population, and out of that total lot, it may be in thousands or lakh, and out of this such a large mass, we generally survey 300, 400, 500, or at the most 1000, 1200. Likewise, this is our sample size. We generally don't investigate the entire target population, and that is what is called a census survey, and typically we conduct sample surveys. So what is inferential statistics? Inferential statistics is more about investigating sample. Okay, आप सैंपल का डेटा कलेक्ट कर रहे हो, उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, एंड यू आर डिड्यूसिंग इन्फरेंसेस अबाउट अ लार्जर लॉट. This process is considered as inferential statistics. It is more about drawing inferences about a target population by investigating a sample. This is what is called as inferential statistics. Now we'll talk about the statistical inference, because we are supposed to report statistical inference. Then what is statistical inference? Now we just take a look over this picture. This is our target population. Okay, the total number of students or the youth or the employees that you have been surveying. It may be anything जो आप जिनका सर्वे कर रहे हैं. This is your target population. और इसकी जो संख्या है, इसका साइज जो है, target population size, it is typically denoted by capital N. And generally it is in thousands or lakhs, or many times it may be in crore. So this capital N is a very large number, and it is not virtually feasible for a research scholar, individual research scholar like we people, to collect data from each and every individual in your target population. That is why what do? We follow some sampling techniques so as to identify some samples. As you can see, I have identified these samples from the available target population, defined target population, and I have circulated my survey form only to the selected lot. और ये सिलेक्शन कैसे किया है? तो by following some scientific sampling techniques like probability and non-probability sampling techniques. Now we have administered our survey form only on this selected lot, and this lot is considered as a sample. Okay, now I have collected data only from this sample, which is a representative part of this larger population. And what I am doing, the data that I have gathered from this smaller lot, I am performing analysis only on this data, and I am coming up with some results after analyzing the data. And what I am doing with these results में क्या आएगा? आप मीन, मोड, मीडियन ये सब कंप्यूटेशन कर रहे हैं, कोरिलेशन कोएफिशिएंट या रिग्रेशन के कोएफिशिएंट्स आप कंप्यूटेशन कर रहे हो, एंड व्हाट यू आर सिंपली डूइंग, आप बोल रहे हो कि इस सैंपल का मीन यानी एक्स बार जो आया है वही इस टारगेट पॉपुलेशन का मीन है, यानी इसका मीन जो है, इसका मीन यूज करके हम बोल रहे हैं कि हम इन्फरेंस निकाल रहे हैं टारगेट पॉपुलेशन के बारे में. यानी इसमें दो कॉन्सेप्ट्स है, एक होते हैं पॉपुलेशन पैरामीटर और दूसरा होते हैं सैंपल स्टैटिस्टिक्स. सैंपल का डेटा
ये वाला डेटा, सैंपल का डेटा प्रोसेस करके यानी एनालाइज करके जो मेजर्स हम कंप्यूट करते हैं, मेजर्स यानी क्या, अभी आपको मालूम है, मीन, मोड, मीडियन, स्टैंडर्ड डिविएशन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड एरर, स्क्यूनेस, कर्टसीज, ऑल दीज आर कंसिडर्ड एज मेजर्स। आप सैंपल का डेटा प्रोसेस करके जो मेजर्स का कंप्यूटेशन करते हैं उनको कहा जाता है सैंपल स्टैटिस्टिक्स। पर हमने क्या किया, टारगेट पॉपुलेशन में से तो एक छोटा सा लॉट लिया है, हो सकता है कि इसका साइज 1 लाख का है, और ये 1 लाख में से हमने सैंपल साइज लिया है जिसको स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, यह सिर्फ 300 का। ओके, आपने 300 का डेटा एनालाइज करके जो मीन निकाला है, आप बोल रहे हैं कि यही मीन इसका है, पर एक्चुअली ये 300 के डेटा का मीन और इसका मीन तो अलग होगा ना। ये जो 1 लाख का पूरा अगर डेटा कलेक्ट करते हैं तो इसका भी तो अपना एक मीन आएगा। इसको हम कहते हैं पॉपुलेशन के पैरामीटर्स। यानी क्या, अगर हम सेंसस सर्वे करते हैं, अगर हम सेंसस सर्वे का मतलब टारगेट पॉपुलेशन में जितने भी लोग हैं उन सबका डेटा कलेक्ट करके जो एनालिसिस करेंगे, उस वो जो आपके मेजर्स रहेंगे, यानी क्या, जैसे सैंपल का मीन है वैसे पॉपुलेशन का भी तो मीन है, जैसे सैंपल का आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है वैसे पॉपुलेशन का तो स्टैंडर्ड डेविएशन है। जो मेजर्स हम यहाँ पे कंप्यूट करते हैं वही मेजर्स लार्जर पॉपुलेशन पे भी मेजर कर सकते हैं, यानी में। तो जब पॉपुलेशन के मेजर्स की बात होती है उनको कहा जाता है पॉपुलेशन पैरामीटर्स, और जब सैंपल का डेटा कलेक्ट करके उसको प्रोसेस करके जो मेजर्स हम कंप्यूट करते हैं उनको कहते हैं सैंपल स्टैटिस्टिक्स। ओके, यानी क्या, स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस का मतलब क्या हो गया, सैंपल स्टैटिस्टिक्स यूज करके पॉपुलेशन पैरामीटर्स क्या है इसके बारे में अंदाजा लगाना या एस्टिमेशन करना, इस प्रोसेस को ही हम स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस डिराइव करना कहते हैं। अभी पॉपुलेशन पैरामीटर हम लोग जो बोल रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स में सिर्फ 3 पैरामीटर्स माने जाते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, स्टैटिस्टिक्स ये सब्जेक्ट डिसिप्लिन में 3 पैरामीटर्स माने जाते हैं। एक होता है मीन, दूसरा होता है प्रपोर्शन, और तीसरा होता है एसडी, स्टैंडर्ड डेविएशन। और आपको भी मालूम है, आपके पास मीन बेस्ड स्टैंडर्ड डेविएशन एक कंसेप्ट है और प्रोपोर्शन बेस्ड स्टैंडर्ड डेविएशन दूसरा कंसेप्ट है। यानी आप जो स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हो, मीन बेस्ड स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला कुछ और होता है, प्रोपोर्शन बेस्ड स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला कुछ और होता है। यानी क्या, हमारे पास 3 पैरामीटर्स है। मीन, प्रोपोर्शन का मतलब होता है परसेंटेज हमारे सेंस में। अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे सैंपल में 60% मेल है, तो ये हो गया परसेंटेज। इसको मैं अगर डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देता हूँ कि 0.6, इसको कहते हैं proportion statistics में। So proportion is nothing but these are the percentages when we express it in terms of decimal points, that becomes proportion। अभी आपने एक कंसेप्ट तो सुना होगा, पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, उसके रूट्स जो है यहाँ लाए होते हैं, पैरामेट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, वी आर ऑन टू इट। पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक में फर्क क्या है, जब आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते वक्त पैरामीटर्स का यूज करते हो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप हाइपोथेसिस टेस्ट परफॉर्म करते वक्त पैरामीटर्स का यूज करते हो तो उन टेस्ट को पैरामेट्रिक टेस्ट कहा जाता है। और अभी आपको ये तो पता चल गया है, पैरामीटर यानी क्या, मीन, एसटी और परसेंटेज। इनका उपयोग हाइपोथेसिस टेस्टिंग में आप कर रहे हो, तो जो टेस्ट आप परफॉर्म करोगे उस डेटा, उस पर्टिकुलर टेस्ट को हम पैरामेट्रिक टेस्ट कहते हैं। पर अगर आप मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन और परसेंटेज यूज नहीं कर रहे हो और फिर भी हाइपोथेसिस टेस्ट परफॉर्म कर रहे हो, तो उसको हम कहते हैं नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। उसके बाद आप पैरामेट्रिक टेस्ट कब परफॉर्म करते हैं, जब आपके पास मेट्रिक डेटा होता है। और आपको तो अभी मालूम है ना मेट्रिक और नॉन मेट्रिक में फर्क क्या है। मैंने कल आपको 4 लेवल्स ऑफ स्केल्स समझाई थी, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशो। पहले 2 लेवल की जो आपकी स्केल्स है, नॉमिनल और ऑर्डिनल, उनको नॉन मेट्रिक कहते हैं। अगर आप नॉमिनल और ऑर्डिनल डेटा यूज करके हाइपोथेसिस टेस्ट परफॉर्म कर रहे हो तो उसको नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कहेंगे। पर वही आपके पास इंटरवल या रेशो स्केल का डेटा है, यानी क्या, आपके पास न्यूमेरिक डेटा है, तो आप जो टेस्ट करोगे उसको पैरामेट्रिक टेस्ट कहते हैं। नॉन मेट्रिक यानी क्या, आपके पास नॉन न्यूमेरिक डेटा है, यानी क्या, आपके पास कैटेगोरिकल डेटा है या फिर आपके पास ऑर्डिनल डेटा है। ऑर्डिनल का मतलब रैंक ऑर्डर वाला। तो जो टेस्ट परफॉर्म करेंगे उनको नॉन पैरामेट्रिक कहते हैं। इट इज सो सिंपल। उसके बाद पैरामेट्रिक टेस्ट परफॉर्म कब करते हैं, जब आपका डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, यानी
आपका डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और सैंपल साइज लार्ज है। और स्टैटिस्टिक्स में लार्ज सैंपल साइज का मतलब होता है ग्रेटर देन इज इक्वल टू 30 का सैंपल साइज, और जनरली हमारा होता ही है 30 के ऊपर ही सैंपल साइज होता है सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट्स में। तो आपका सैंपल साइज लार्ज है और आपका डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो जो टेस्ट करेंगे उसको पैरामीट्रिक कहते हैं। नॉन पैरामीट्रिक कब करेंगे? जब आपका डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है और आपका सैंपल साइज भी छोटा है यानी लेस देन 30 है, उस वक्त जो टेस्ट करेंगे उसको नॉन पैरामीट्रिक कहेंगे। उसके बाद जब आपको रिजल्ट्स को जनरलाइज करना है, यानी क्या, आपको इन्फरेंसेस निकालने हैं, सैंपल का डेटा यूज करके पॉपुलेशन के बारे में आपको कमेंट करना है, अगर ऐसा है तो फिर हम लोग जो टेस्ट परफॉर्म करेंगे उसको पैरामेट्रिक टेस्ट कहेंगे। और आपको रिजल्ट जनरलाइज करना ये कंपलसरी नहीं लग रहा है कि आपको जस्ट जो डेटा आया है वो रिपोर्ट करना है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस विल जस्ट सिंपली परफॉर्म नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। और एग्जांपल्स कौन से हैं पैरामेट्रिक के? हम लोग जो टी टेस्ट, सेट टेस्ट, एनोवा, कोरिलेशन, रिग्रेशन, ये टेस्ट जो जनरली परफॉर्म करते हैं उनको पैरामेट्रिक कहा जाता है। और नॉन पैरामेट्रिक में काई स्क्वायर टेस्ट जो हम इस पर्टिकुलर वर्कशॉप में करने वाले हैं, उसके साथ साथ विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट, मैन व्हिटनी यू टेस्ट, क्रुस्कल वैलिस टेस्ट, ये कुछ बहुत ही कॉमन एग्जांपल्स है नॉन पैरामेट्रिक के। हम लोग बात कर रहे हैं स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस की। स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस में दो चीजें आती हैं, एक होता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग और दूसरा होता है एस्टिमेशन ऑफ सीआई। सीआई का लॉन्ग फॉर्म है कॉन्फिडेंस इंटरवल। दोनों चीजें एक एक करके समझा देता हूं। हम लोग बात कर रहे हैं स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस डिड्यूस करने की, या फिर आप उसको कंप्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं या रिपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस। उसमें पहली जो चीज है उसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग। और हाइपोथेसिस टेस्टिंग को ही स्टैटिस्टिक्स में टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस कहा जाता है। और दूसरी चीज है एस्टिमेशन। एस्टिमेशन किसका करते हैं? तो सीआई का, कॉन्फिडेंस इंटरवल का। अभी ये दोनों एक एक करके मैं समझा रहा हूं। यहां से शुरुआत कर रहे हैं हम एस्टिमेशन से और फिर जाएंगे हाइपोथेसिस टेस्टिंग, और बचा हुआ जो भी वर्कशॉप है उसमें सिर्फ एक ही चीज चलेगी, वो रहेगा हाइपोथेसिस टेस्टिंग। अलग अलग प्रकार की टेस्ट करेंगे, पैरामेट्रिक, नॉन पैरामेट्रिक। सबसे पहले ये समझ लेते हैं एस्टिमेशन ऑफ सी आई यानी क्या, और इसको कंप्यूट कैसे करते हैं एसपीएसएस में। वहां जाने से पहले एक जस्ट थोड़ा सा डिस्कशन ये कर रहे हैं कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्यों करते हैं। ये भी शायद आपका फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होगा दिमाग में कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते क्यों है। एक सिंपल से एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने आईटी इंडस्ट्री में जो एम्प्लॉयज काम करते हैं उनका ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस मुझे मेजर करना है। दिस इज माय कंस्ट्रक्ट, C1 में कह रहा हूं। और मेरा सवाल यह है कि क्या मेल को ज्यादा स्ट्रेस होता है, मेल एम्प्लॉयज को, या फीमेल एम्प्लॉयज को ज्यादा स्ट्रेस होता है? तो मैंने ये डेटा कलेक्ट कर लिया। ये जो है ये लिकर्ट स्कोर्स है, सब 14, 12 वगैरह, ये सब लिकर्ट स्कोर्स है। ये मेल के स्कोर्स है ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस के, और ये फीमेल के हैं। फिर मैंने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स दोनों का परफॉर्म किया, मीन, मोड, मीडियन, आप देख सकते हो, स्टैंडर्ड एरर वगैरह। मैं इंटरेस्टेड हूँ मीन में। ये जो है ये मेल का ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस का मीन है, और ये जो है ये फीमेल एम्प्लॉयज के ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस का मीन है। आंखों से क्या दिख रहा है? मेल का स्ट्रेस 15.36 है और फीमेल का स्ट्रेस 14.24 है। आंखों से दिख ही रहा है कि मेल का जो स्ट्रेस है वो ज्यादा है। तो क्या हम ये कंक्लूड कर दें कि मेल एम्प्लॉयज को स्ट्रेस ज्यादा है? नहीं, ऐसा नहीं करते हैं। इसके लिए हमको लगता है स्टैटिस्टिकल एविडेंसेस, और ये स्टैटिस्टिकल एविडेंसेस चेक करना यानी ही हाइपोथेसिस टेस्टिंग होता है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग यानी क्या? ये 15.36 और 14.24, इसके बीच में 1.12 का डिफरेंस है, और ये 1.12 का डिफरेंस ज्यादा है मेल का। तो हम एक्चुअली ये देख रहे हैं कि क्या ये 1.12 का डिफरेंस सिग्निफिकेंट है, सो दैट हम ये कंक्लूड कर ले कि मेल का ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस ज्यादा है या कम है। ये इसके एविडेंसेस, स्टैटिस्टिकल एविडेंसेस कलेक्ट करने की जो प्रोसेस है उसी को हाइपोथेसिस टेस्टिंग कहते हैं। ये पहला मोमेंट है हमारे वर्कशॉप का कि जहां पे मैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग यानी क्या समझा रहा हूँ। इसके बाद तो टेस्ट परफॉर्म करनी ही है। तो जो भी थोड़े बहुत अभी डाउट्स रह गए होंगे मन में, एक एक करके क्लियर होते जाएंगे जैसे जैसे टेस्ट अनफोल्ड होगी। आज पहली टेस्ट तो कर ही रहे हैं हम लोग। ये और एक एग्जांपल आप देख सकते हो। ये मेरा टारगेट पॉपुलेशन है। मैंने सेंसस सर्वे किया और एक पर्टिकुलर वेरिएबल का मेरा एवरेज आया है 3.75, और आपको मालूम है इसको हम पॉपुलेशन पैरामीटर कहते हैं। और पॉपुलेशन पैरामीटर यानी ये इसको म्यू कहते हैं हम लोग। और ये है हमारा एक्स बार, सैंपल का मीन।
और ये आया 3.72। आंखों से जो डिफरेंस दिख रहा है 0.03 का, क्या ये डिफरेंस मैटर करता है? ये जानने के लिए जो हम लोग करेंगे उसी को हाइपोथेसिस टेस्टिंग या फिर टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस कहते हैं। देखते स्टेप्स हाइपोथेसिस टेस्टिंग परफॉर्म करते वक्त 5 स्टेप प्रोसेस होती है। सबसे पहले हमको नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करना होता है। उसके बाद हम अल्फा, जिसको सिग्निफिकेंस लेवल कहा जाता है, ये स्पेसिफाई करते हैं। और जनरली हमारे सर्वे प्रोजेक्ट में ये 0.05 होती है या फिर ये 0.01 भी कभी कभी होती है। आपने शायद कॉन्फिडेंस लेवल के बारे में सुना होगा, जो 95% लेते हैं हम लोग। तो बचा हुआ जो 5% है, यह है आपका कॉन्फिडेंस लेवल। बचा हुआ 5% जो है उसको डेसिमल फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करते हैं तो ये आ जाता है 0.05, और यही हमारा सिग्निफिकेंस लेवल, जिसको अल्फा ये लेटर से डिनोट करता है। उसके बाद फिर हम टेस्ट स्टैटिस्टिक्स और पी वैल्यू का कंप्यूटेशन करते हैं, और यही हमको एसपीएसएस एक्चुअली कंप्यूट करके देता है। उसके बाद एसपीएसएस का जो आउटपुट आता है उसको हम इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं, सो दैट वी कैन कंक्लूड दैट वेदर अवर हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। तो जैसे एक एक करके मैं टेस्ट परफॉर्म करूंगा, तो ये 5 स्टेप प्रोसेस परफॉर्म करनी है उस वक्त लाइव एग्जांपल लेते हुए, और ज्यादा ये चीजें क्लियर हो जाएगी। अभी जो हमारा इवेंचुअल डिसीजन है कि हमारा हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुआ है कि रिजेक्ट हुआ है, ये जानने के 2 रूल्स है। पहला रूल मैं बता रहा हूँ, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स मेथड। आप जब एसपीएसएस का आउटपुट जनरेट करोगे तो उसमें आपको टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू दिखेगी, जो हमको सॉफ्टवेयर कैलकुलेट करके दे रहा है। वो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स को हम कंपेयर करते हैं क्रिटिकल वैल्यू के साथ। और क्रिटिकल वैल्यू भी हम लोगों को मोस्ट ऑफ द टाइम सॉफ्टवेयर कैलकुलेट करके देता है, पर एसपीएसएस में इंसिडेंटली वो सुविधा नहीं है। तो मैं बता रहा हूँ ये क्या है क्रिटिकल वैल्यू। इसको टैबुलेटेड वैल्यू भी कहते हैं। टैबुलेटेड वैल्यू इसको कहते हैं। जो आपके, आप अगर टी टेस्ट परफॉर्म कर रहे हो तो टी टेबल, आपने अगर कोई किताब स्टैटिस्टिक्स या रिसर्च मेथोडोलॉजी की पढ़ी होगी, तो उसके बैक साइड में अनेक्षर में आपको ये टेबल्स दिखेंगे, जिसमें काई स्क्वायर टेबल, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जिसको जेड टेबल कहते हैं, टी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यानी टी टेबल, एफ टेबल होता है वहां फिशर का। ऐसे अलग अलग प्रकार के टेबल्स होते हैं, वहां से वैल्यूज लेके आते हैं, जिसको क्रिटिकल वैल्यू कहते हैं। तो रूल क्या कह रहा है, टेस्ट स्टैटिस्टिक जो हमको एसपीएसएस ने कंप्यूट करके दिया है वो, और क्रिटिकल वैल्यू मैं बताने वाला हूँ इसको कैसे हम लोग मेजर करते हैं। तो हम कंपेयर कर रहे हैं टेस्ट स्टैटिस्टिक्स को क्रिटिकल वैल्यू के साथ या टैबुलेटेड वैल्यू के साथ। अगर टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू से कम है तो हम कहते हैं नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड, अदरवाइज हम कहेंगे नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। एक पिक्चरियल प्रेजेंटेशन देखते हैं। ये हमारा व्हाट वी कैन से, दिस इज अवर डेटा डिस्ट्रीब्यूशन यू कैन से, और यहाँ पे होता है जनरली हमारा मीन, और ये है हमारी, जो मैं बता रहा था टैबुलेटेड वैल्यू, वो ये है जिसको क्रिटिकल वैल्यू कहते हैं। और ये लोअर क्रिटिकल वैल्यू और ये अपर क्रिटिकल वैल्यू, इसके बीच में जो रीजन है इसको कहते हैं एरिया ऑफ एक्सेप्टेंस। और इसको, ये जो 2 टेल्स बन रही है ये और ये, इसको कहते हैं एरिया ऑफ रिजेक्शन। और हम लोगों को जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स स्पेसिस ने कैलकुलेट करके दिया है, वो अगर यहाँ पे फॉल होता है, इट विल फॉल ओवर हियर समवेयर। यस एग्जैक्टली। सो एज यू कैन सी, इट इज फॉलिंग in area of rejection, therefore we will say that our null hypothesis is rejected because this is the area of rejection. और एक्सेप्ट कब होगा, जब आपका टेस्ट स्टैटिस्टिक्स विल फॉल विद इन दिस रेंज ऑफ क्रिटिकल वैल्यूज, जो टेबुलेटेड वैल्यू होती है उसके बीच में, देन वी विल से दैट आवर नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। देन देयर इज सेकंड रूल, डिसीजन रूल, विच इज कॉल्ड एज पी वैल्यू मेथड। हम लोगों को एसपीएसएस सॉफ्टवेयर पी वैल्यू कंप्यूट करके देगा, और हमारे पास अल्फा, जनरली हम सब अगर सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट में बिलीव करते हैं तो हमारा अल्फा 0.05 ही होता है। तो हम लोगों को पी वैल्यू दो स्पेसेस कैलकुलेट करके देगा, हम पी वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं अल्फा के साथ, and if p value is lesser than greater than your alpha, then we say that our null hypothesis is accepted, otherwise we will say that our null hypothesis is rejected. अभी आपको ये तो पता चल गया है कि स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस जब हम रिपोर्ट करते हैं तो उसमें 2 चीजें आती हैं। एक होता है कंप्यूटेशन ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल, जिसको CI कहते हैं, और दूसरा होता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो पहली बास्केट जो है CI, कॉन्फिडेंस इंटरवल का एस्टिमेशन की,
वो मैं पहले समझा रहा हूँ आपको एसपीएसएस में कैसे कंप्यूटेशन करते हैं, उसका मतलब क्या है कॉन्फिडेंस इंटरवल जो मैं बोल रहा हूँ उसका, और फिर हम लोग करेंगे हाइपोथेसिस टेस्टिंग। समझने की कोशिश करते हैं कि कॉन्फिडेंस इंटरवल यानी क्या। कंसेप्ट वही है, हमारे पास टारगेट पॉपुलेशन, और टारगेट पॉपुलेशन इफ सपोज 1 लाख, आपने इसमें से एक सैंपल साइज लिया 300 का, 1 लाख में से सिर्फ 300 का सैंपल साइज लिया, आपने डेटा कलेक्ट किया, और आपके पास एक पर्टिकुलर वेरिएबल है V1। इस वेरिएबल V1 का डेटा आपने 300 का कलेक्ट किया हुआ है, आपके पास डेटा सीरीज है 1 2 3 अप टू 300। अभी आप ये वेरिएबल V1 जो है इसका निकाल रहे हैं मीन, जिसको कहते हैं एक्स बार, और ये डेटा सीरीज न्यूमेरिक डेटा है ये, तो इसका हम प्लॉट बना लेंगे, इसको कहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। और यहाँ पे सेंटर में ये ऑर्डिनल होता है, और यहाँ पे है हमारा मीन जो हमने इस डेटा का कंप्यूट किया हुआ है। कॉन्फिडेंस इंटरवल यानी क्या है, हमने 1 लाख में से 300 का सैंपल लेके उसका डेटा कलेक्ट करके उस डेटा सीरीज का मीन निकाला है। अभी ये मीन यूज करके 1 लाख का मीन क्या है ये जानने की जो प्रोसेस है, ये तो हो गया 300 का मीन ना, 1 लाख का मीन क्या है, 1 लाख का मीन कौन से दो वैल्यू के बीच में आएगा, आप देख रहे हैं इसे, इसको कहते हैं लोअर क्रिटिकल लिमिट, LCL, लोअर क्रिटिकल लिमिट, एंड अपर क्रिटिकल लिमिट, UCL। ये आपका मीन इफ सपोज इनकम की बात हो रही है तो ये इनकम आ रहा है 31,000, ये तो हो गया 300 का। व्हाट अबाउट 1 लाख का मीन, तो हम बोल रहे हैं ये वैल्यूज निकाल के देंगे कि इफ सपोज इट इज 27K एंड इफ सपोज इट इज 39K। तो हम क्या बोल रहे हैं, हमने जो 300 का डेटा कलेक्ट किया उसका मीन तो 31,000 है, पर 1 लाख का मीन 27,000 से 39,000 के बीच में कहीं पे तो भी है। ये जो एक इंटरवल निकाल रहे हैं हम लोग, ये एक रेंज जो निकाल रहे हैं 27K टू 39K, इसी को हम कहते हैं CI, कॉन्फिडेंस इंटरवल। और एसपीएसएस से हम ये दो वैल्यूज कंप्यूट करने की कोशिश करते हैं, और इनको हम कहते हैं LCL और UCL। और एसपीएसएस में इसको लोअर बाउंड कहा गया है, LCL को लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड। तो चलिए कंप्यूटेशन करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं और कंप्यूटेशन करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको पहले स्क्रीनशॉट्स दिखा देता हूं और फिर एक्चुअल डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं। हम ये फाइल यूज करेंगे, एनालिसिस ऑफ रेशियो डेटा। मेरे पास ये एक वेरिएबल है, ये सैंपल का डेटा है मेरे पास, इसमें मैं एनालाइज में जाऊंगा, फिर डिस्क्रिप्टिव स्टैट, और आपको याद होगा कल हमने ये यूज किया था फंक्शन, ये भी यूज कर लिया है हमने, क्रॉस स्टेप कैसे यूज करते बताया, आज मैं बता रहा हूँ एक्सप्लोर फंक्शन कैसे यूज करते हैं। तो एनालाइज, डिस्क्रिप्टिव स्टैट, एक्सप्लोर, और इसमें फिर वेरिएबल यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर लिया हमने। उसके बाद जाएंगे प्लॉट्स में, और प्लॉट्स में आपको सिंपली हिस्टोग्राम पे क्लिक करना है, और नॉर्मलिटी प्लॉट नहीं किया तो भी चलेगा, सिर्फ हिस्टोग्राम पे प्लॉट आप क्लिक करोगे एंड देन प्रेस कंटिन्यू एंड देन प्रेस ओके, दैट्स इट। तो यू विल गेट दिस कॉन्फिडेंस इंटरवल। चलिए करके देखते हैं एक बार, और वहीं पे मैं आपको इंटरप्रिटेशन समझा देता हूँ। एनालिसिस ऑफ रेशियो डेटा। Okay, so this is my data, this is my data. Income is my variable, as you can see, income variable, it is numeric, width is 12, label is income of consumers, scale variable है। अभी हम लोग इसका कर रहे हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल का एस्टिमेशन, डिस्क्रिप्टिव स्टैट, एक्सप्लोर, देन आई एम ट्रांसफरिंग माय वेरिएबल, उसके बाद प्लॉट्स, उसके बाद स्टेम एंड लीफ को डिसएक्टिवेट कर देंगे, हिस्टोग्राम, कंटिन्यू, ओके। As you can see, this is my output. This is case processing summary. So sample size over here is 23, and over here you will find the mean, that is X bar of this data series is 47.95, and this is your 95% confidence interval for mean. And as you can see, you will find two values, lower bound and upper bound. What does this mean? This is your estimation of confidence interval,
This is our mean. Mean is 47.95 and this is LCL. Lower bound is 43.61 and over here we have got upper bound, that is UCL, which is 52.29. यानी हमारे सैंपल का मीन तो 47 है, पर पॉपुलेशन का मीन विल लाई इन बिटवीन दिस टू वैल्यूज एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज CI। और इसको कहते हैं स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस निकालना, यानी क्या, सैंपल का डेटा यूज करके पॉपुलेशन के बारे में एस्टिमेशन करने की जो प्रोसेस है उसी को हम कंप्यूटेशन ऑफ या एस्टिमेशन ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल कहते हैं। So I hope it is clear. Now we will get into the next part. Now we are going to perform statistical test, that is one sample t-test. Okay, this is the first hypothesis testing that we are going to perform now. पहले समझने की कोशिश करते हैं, आपको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं सो दैट मेंटल मैप बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। बात हो रही है स्टैट की, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। इसमें दो चीजें, डिस्क्रिप्टिव स्टैट और इन्फरेंशियल स्टैट। डिस्क्रिप्टिव में फिर से दो चीजें, डेटा प्रेजेंटेशन एंड देन कंप्यूटेशन ऑफ समरी स्टैट। इसमें फिर से दो चीजें, डेटा प्रेजेंटेशन टेबुलर एंड ग्राफिकल, और समरी स्टैट में फिर से तीन बास्केट्स, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, then measures of dispersion या deviation and measures of symmetry। मोस्टली ये सब चीजें हमने SPSS में देख लिया एट ए ग्लांस। बात हो रही है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स की। यहाँ पे फिर से दो चीजें, कंप्यूटेशन ऑफ CI कॉन्फिडेंस इंटरवल, और यहाँ बात हो रही है हाइपोथेसिस टेस्टिंग की, और इसमें है तीन बास्केट्स। इसमें है नंबर 1 बास्केट जिसको कहते हैं यूनिवेरिएट एनालिसिस। फिर सेकंड है बाइवेरिएट एनालिसिस, उसके बाद है थर्ड जिसको कहते हैं मल्टीवेरिएट। ओके, ये है हाइपोथेसिस टेस्टिंग की बास्केट, और अभी जो हम लोग टेस्ट परफॉर्म करने वाले हैं वो है यूनिवेरिएट, और बाकी जो ये है बाइवेरिएट हम लोग कल देखेंगे। और इन सब में यूनिवेरिएट हो या बाइवेरिएट हो, इसमें अपनी अपनी नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट आती है। तो चौथी बास्केट आप कंसिडर कर सकते हो नॉन पैरामेट्रिक। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, जिसमें आज ही के सेशन में मैंने आपको कुछ टेस्ट बताई थी, जैसे काई स्क्वायर टेस्ट जो बहुत ही पॉपुलरली यूज होती है, उसके साथ साथ आपकी साइन रैंक टेस्ट विल्कॉक्सन की, उसके साथ साथ मैन विटनी यू टेस्ट, क्रुस्कल वैली टेस्ट बहुत बार की जाती है। तो ये नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट की बास्केट है। तो हम लोग अभी यहाँ पे हैं यूनिवेरिएट में। मैं थोड़ा सा फ्रेमवर्क और बेटर क्लियर कर देता हूँ। ये है हमारे हाइपोथेसिस टेस्टिंग, यूनिवेरिएट, बाइवेरिएट, मल्टीवेरिएट और नॉन पैरामेट्रिक, जो मैं आपको बता रहा था। बात करते हैं यूनिवेरिएट की। यूनि स्टैंड्स फॉर वन एंड वेरिएट स्टैंड्स फॉर वेरिएबल। मीन्स इफ यू आर परफॉर्मिंग हाइपोथेसिस टेस्टिंग यूजिंग ओनली वन वेरिएबल, आपने हाइपोथेसिस बनाया हुआ है जिसको H0 कहते हैं, नल हाइपोथेसिस, और यहाँ पे आपका एक स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट में आपने सिर्फ एक वेरिएबल का उल्लेख किया है।
इन दैट पर्टिकुलर केस वी विल परफॉर्म यूनिवेरिएट हाइपोथेसिस टेस्टिंग या फिर यूनिवेरिएट एनालिसिस। और इसमें आप देखेंगे यूनिवेरिएट की, अगर आप पूछेंगे कि सर कौन सी टेस्ट आती है यूनिवेरिएट में, तो मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। हम लोग एक ही टेस्ट इसमें ये पर्टिकुलर वर्कशॉप में कर रहे हैं क्योंकि बास्केट है बड़ी यूनिवेरिएट एनालिसिस की, पर इतनी ज्यादा यूज नहीं होती। जो सबसे ज्यादा यूज होती है वो मैं आपको आज करके दे रहा हूँ। यूनिवेरिएट एनालिसिस में दो बास्केट्स है। एक है मीन बेस हाइपोथेसिस टेस्टिंग और दूसरा है प्रोपोर्शन बेस या फिर परसेंटेज बेस। ओके, अभी आप देखेंगे हाइपोथेसिस टेस्टिंग के ये दो बास्केट हमेशा दिखेगी आपको, यूनिवेरिएट हो, बाइवेरिएट हो या मल्टीवेरिएट हो। एक मीन बेस और परसेंटेज बेस। अभी ये कंपोजिशन कहाँ से आया मीन बेस और परसेंटेज बेस, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। हमने एक सर्वे फॉर्म तैयार किया हुआ है। और इसमें आपके जो जनरली क्वेश्चंस होते हैं, नेम, जेंडर, एज, एजुकेशन, उसके साथ साथ मैरिटल स्टेटस वगैरह वगैरह, जिसको हम सोशियो डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं, ये सबके इसमें जनरली होते ही हैं। ओके, उसके बाद हमारे एक इनकम भी होता है, और उसके बाद फिर हमारे, ये तो सबके लिए कॉमन ही होते हैं मोस्टली। और उसके बाद फिर हमारे पे यहाँ पे मेन क्वेश्चन शुरू होते हैं। इफ सपोज मुझे अवेयरनेस निकालना है, अवेयरनेस टुवर्ड्स इफ सपोज यूपीआई एप्स, ये मेरा पहला कंस्ट्रक्ट है। उसके बाद एटीट्यूड, ये मेरा और एक कंस्ट्रक्ट है। फिर परस्यूड रिस्क इफ सपोज, और देन ईज ऑफ यूज। ऐसे कुछ मेरे वेरिएबल्स हैं। और इसमें मैंने लीकर्स के बहुत सारे स्टेटमेंट्स पूछे हैं। ओके, और ये यूपीआई को लेके सपोज है, यूपीआई एप्स को लेके। और यहाँ पे ही एक क्वेश्चन मैंने पूछा है कि डू यू यूज यूपीआई, और ऑप्शन दिए मैंने ए यस और बी नो। इसके बाद मैंने और एक क्वेश्चन पूछा है कि हाउ ऑफन यू यूज, हाउ ऑफन यू यूज यूपीआई। और यहाँ मैंने फिर से ऑप्शंस दिए हैं। यहाँ पे मैंने बोला है कि वंस इन अ मंथ, लाइक वाइज ऐसे मैंने कुछ फ्रीक्वेंसीज को लेके ऑप्शंस दे दिए हैं, सी डी। ओके, अभी इस प्रकार से हमारा क्वेश्चनर रन होता है और इस तरीके से प्रेजेंटेशन करते हैं। अभी आप देखेंगे कि अगर जेंडर का मैंने 300 लोगों का, यानी ये पूरा क्वेश्चनर मैंने एडमिनिस्टर कर लिया, मेरा सैंपल साइज है सपोज 300 का। अभी मैं एनालिसिस शुरू कर रहा हूँ एंट्री लेवल का। आप देखेंगे जेंडर का मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, तो मैं क्या बोलूंगा, मेरे सैंपल में मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं। और इसको मैं इवेंचुअली कन्वर्ट कर रहा हूँ परसेंटेज में। मैं बोल रहा हूँ कि मेल का परसेंटेज कितना है सैंपल का और फीमेल का परसेंटेज कितना है। उसी तरीके से एज वाइज डिवीजन जो होगा उसमें भी बिलो 20 ईयर्स ऑफ एज के कितने परसेंट वाले रेस्पोंडेंट्स है, उसके बाद 21 to 40 वाले कितने परसेंटेज है। एजुकेशन वही, एसएससी तक कितने परसेंट लोग पढ़े हैं, एचएसएससी कितने परसेंट लोग पढ़े हैं, वगैरह वगैरह। उसी तरीके से मैरिड कितने, अनमैरिड कितने, यानी परसेंटेज कंपोजिशन सैंपल का हमारा। उसके बाद इनकम, इफ सपोज आपने इनकम मेजर किया है स्केल पे, मेट्रिक पे, तो पहले का इनकम इफ सपोज 17,000, दूसरे का इनकम जो है वो इफ सपोज 31,000, लाइक वाइज ऐसे 300 का है। आप इसका क्या करोगे, एंट्री लेवल एनालिसिस, इसका मीन निकालेंगे। फिर आप आए यहाँ पे, डू यू यूज यूपीआई, यस वाले कितने और नो वाले कितने, फिर से ये डेटा आ रहा है परसेंटेज में, नो वाला डेटा परसेंटेज में। हाउ ऑफन यू यूज, रेगुलर, ऑफन वगैरह, है ना, नेवर, इसके भी परसेंटेज आएंगे कि कितने परसेंट लोग मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं, कितने परसेंट लोग ऑफन या ओकेजनली यूज करते हैं वगैरह।
अवेयरनेस को लेके लिकट के स्कोर आएंगे, यानी न्यूमेरिक डेटा आएगा, उसका फिर से इस तरीके से डेटा बनेगा और उसका भी निकलेगा मीन। आप देखेंगे ये पूरे के पूरे क्वेश्चनियर का अगर एंट्री लेवल एनालिसिस करना है तो ये दो सेंस में ही बनता है। एक तो आपका डेटा जो है वो परसेंटेज में आ रहा है, या फिर आपके डेटा का एंट्री लेवल एनालिसिस करके उसका मीन ही निकाल पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, आपके क्वेश्चनियर में जितने भी क्वेश्चंस है उनका एंट्री लेवल एनालिसिस करेंगे तो आप एक तो परसेंटेज निकालेंगे या मीन निकालेंगे। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आपके जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग है, ओके, हम बात कर रहे हैं यूनिवेरिएट की। ये टेस्ट भी दो प्रकार की होती है आपके डेटा के नेचर को ध्यान में रखते हुए। एक है जब आपके पास आपका जो वेरिएबल है उसका आप मीन निकालने वाले हो, और जब आप आपके डेटा का परसेंटेज निकाल रहे हो, इसको कहते हैं प्रपोर्शन बेस्ड। तो इसका मतलब क्या हो गया, यूनिवेरिएट में मीन बेस्ड हाइपोथेसिस टेस्टिंग है और यूनिवेरिएट में भी प्रपोर्शन बेस्ड हाइपोथेसिस टेस्टिंग है। इसमें मीन में फिर से एक कॉन्फ़िगरेशन आता है जब आपका सैंपल साइज लेस देन 30 है और जब आपका सैंपल साइज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 30 है। किताबों में आप देखेंगे कि इसके लिए रिकमेंड की गई है टी टेस्ट, और इस पे जो टेस्ट परफॉर्म करते हैं वो है जेड टेस्ट, और इसमें यूनिवेरिएट में सिर्फ जेड टेस्ट है। अभी फर्क क्या है जेड टेस्ट और आपके टी टेस्ट में। किताबों में ऐसा लिखा है कि टी टेस्ट लेस देन सैंपल अगर 30 है तो करेंगे, और जेड टेस्ट ग्रेटर देन इज इक्वल टू 30 के सैंपल के लिए करेंगे, पर इसमें एक एडिशनल इंफॉर्मेशन लगती है। आप टी टेस्ट आप देखेंगे आपके रिसर्च आर्टिकल्स में आपको टी टेस्ट 1000 का सैंपल रहा तो भी दिख रही होगी, बिल्कुल आप सही है। क्योंकि टी टेस्ट कब करते हैं, जब आपके पास मीन है, यानी डेटा न्यूमेरिक है, ओके, और उसके साथ साथ आपके पास सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको एस से डिनोट करते हैं, और सैंपल का मीन एक्स बार और सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन एस है। तो उस वक्त जो टेस्ट परफॉर्म करते हैं वो होती है टी टेस्ट। जेड टेस्ट कब करते हैं, जेड टेस्ट आपके पास अगर सैंपल का मीन है और पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको सिग्मा कहते हैं, तब जेड टेस्ट करते हैं। और ये जनरली हमारे पास बहुत बार अवेलेबल नहीं होता है, इसलिए जेड टेस्ट करते नहीं है, और एसपीएसएस में जेड टेस्ट का फंक्शन ही नहीं है। इवन एक्सेल में मिल जाएगी आपको जेड टेस्ट, एमएस एक्सेल में एक पैकेज आता है एड इन फीचर, उसमें आपको जेड टेस्ट दिखेगी, पर एसपीएसएस में जेड टेस्ट का फंक्शन मुझे तो नहीं दिखा है, क्योंकि जनरली किया जो जाता है वो टी टेस्ट है, और हम आज जो टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं वो ये है। और यहाँ पे फिर सैंपल साइज इररिलेवेंट हो जाता है, आपका सैंपल साइज 30 से नीचे हो या 30 के ऊपर हो, 1000 जो भी आपका 1200 1500 जो भी सैंपल साइज है 300 400, उस पे आप टी टेस्ट परफॉर्म कर सकते हो। और रिक्वायरमेंट क्या है, आपके पास सैंपल का मीन और सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने यूनिवेरिएट टी टेस्ट, सॉरी, यूनिवेरिएट में दो प्रकार की टेस्ट आती है, मीन और प्रोपोर्शन। हम लोग जो कर रहे हैं सिर्फ मीन बेस ही कर रहे हैं, प्रोपोर्शन बेस्ड टेस्ट मैंने कभी भी किसी पेपर में देखी नहीं है, और एसपीएसएस में भी मुझे इसके फंक्शंस दिखे नहीं है, तो लेसर यूज्ड है इसलिए करेंगे भी नहीं। और जेड टेस्ट का प्रॉब्लम क्या है, हमको लगता है सिग्मा, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा लगता है, इसलिए हम लोग ये टेस्ट नहीं करते हैं। तो यूनिवेरिएट में हम क्या करने वाले हैं, ये एक टेस्ट बनती है जो हम लोग करते हैं और कर भी सकते हैं आसानी से, और एसपीएसएस में फंक्शन भी है। तो इसको एसपीएसएस में वन सैंपल टी टेस्ट कहा है, वन सैंपल टी टेस्ट। एसपीएसएस में यूनिवेरिएट की टी टेस्ट फॉर मीन, एक्चुअल जो हेडिंग है इसका टी टेस्ट फॉर मीन, तो ये है यूनिवेरिएट की, यूनिवेरिएट टी टेस्ट फॉर मीन, ये पूरा का पूरा नाम है टेक्निकल सेंस में, और एसपीएसएस में इसको वन सैंपल टी टेस्ट कहा गया है। उसके बाद आता है बायवेरिएट टेस्ट। तो बाय स्टैंड्स फॉर टू एंड वेरिएट स्टैंड्स फॉर वेरिएबल्स। तो इसमें दो चीजें है, वेरिएबल ये थोड़ा सा मिसलीडिंग लगता है मुझे, वेरिएबल्स तो है ही, पर उसके साथ साथ इसको दो ग्रुप एनालिसिस भी कहते हैं, टू सैंपल टू ग्रुप्स ऐसा भी कहते हैं इसको, टू सैंपल्स टू वेरिएबल्स टू ग्रुप्स एनालिसिस, जिसको बायवेरिएट एनालिसिस कहा गया है। और इसमें ये पूरी बास्केट है जो हम लोग कल करने वाली है, पूरा मैं आपको ये वाला जो टेस्ट है ये हम लोग कल करेंगे, और फिर आखिरी दिन हम लोग ये करने वाले हैं, 5वें दिन।
कोरिलेशन और रिग्रेशन एनालिसिस, और ये है काई स्क्वायर टेस्ट एसोसिएशन की। तो बायवेरिएट में ये बास्केट है कंपैरिजन, यानी आपके पास दो ग्रुप्स है, एक ग्रुप 1 ग्रुप 2, और उसका कंपैरिजन करना है आपको। तो हम लोग बायवेरिएट की ये टेस्ट कल मैं करके दिखाने वाला हूँ, ये पूरी 3-4 फ्लेवर्स है इसमें। उसके बाद कोरिलेशन एनालिसिस, उसके बाद आपका रिग्रेशन एनालिसिस जो करने वाला है डे 5 में, और एसोसिएशन की टेस्ट जो बायवेरिएट की है, जिसको कहा जाता है मेजर्स ऑफ एट्रीब्यूट की टेस्ट, ये है काई स्क्वायर, और ये भी हम इसी वर्कशॉप में करेंगे। कल टाइम रहा तो मैं कल ये काई स्क्वायर और ये वाली जो टेस्ट है ये कल करा दूंगा, और परसों हम लोग ये कोरिलेशन, रिग्रेशन और एनोवा ये मैं प्लान कर रहा हूँ। तो ये कुछ टेस्ट आती है बायवेरिएट में, तो जब मैं बायवेरिएट पढ़ाऊंगा उस वक्त और कॉम्प्रिहेंसिवली ये फ्रेमवर्क देखेंगे। उसके बाद आता है मल्टीवेरिएट, और इसी को एडवांस स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है, जो हमारा इस पर्टिकुलर वर्कशॉप के परव्यू में नहीं है, क्योंकि हम अभी जो वर्कशॉप ले रहे हैं इट इज फॉर बिगिनर्स। सो ये है एडवांस स्टैटिस्टिक्स, पर एक बार देख तो लेते हैं एडवांस स्टैटिस्टिक्स में क्या आता है। मल्टीवेरिएट का मतलब क्या है? मल्टी का मतलब है मेनी, और मेनी का मतलब है ग्रेटर देन 2। वेरिएट का मतलब है वेरिएबल्स V1, V2, V3 डॉट डॉट डॉट, दो से ज्यादा वेरिएबल्स है आपके पास, या फिर दो से ज्यादा ग्रुप्स है, ग्रुप 1, ग्रुप 2, दो से ज्यादा, ग्रुप 3, लाइकवाइज ग्रुप 4, इतने सारे ग्रुप का एनालिसिस करना है तो हम लोग जो करेंगे वो होगा मल्टीवेरिएट एनालिसिस। इसकी बास्केट्स देख लेते हैं। दो बास्केट्स है इसमें, डिपेंडेंस टेक्निक्स और इंटरडिपेंडेंस टेक्निक्स। और डिपेंडेंस टेक्निक्स में हमारे पास जो वेरिएबल्स होते हैं उनको हम डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसमें कॉन्फ़िगरेशन करते हैं एक्स और वाई। अगर आपके पास ऐसा कॉन्फ़िगरेशन है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का एनालिसिस करना है, तो ये सब टेस्ट की जाती है, जिसमें मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस, डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, मैनोवा, कॉन्जॉइंट, कैनोनिकल, स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग जिसको हम सेम कहते हैं। और इन सभी पे मैं वर्कशॉप्स लेते ही आ रहा हूँ, और इसके लिए तो अच्छा खासा कॉम्प्रिहेंसिव वर्कशॉप होता है स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग का। इसमें हम लोग जनरली स्मार्ट पीएलएस नाम से एक सॉफ्टवेयर आता है वो यूज करते हैं, और आपको अगर एसपीएसएस में ये करना है तो एसपीएसएस का ही एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसको एमॉस कहा जाता है, वो यूज करके स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग किया जाता है। और उसके बाद दूसरी बास्केट जो है मल्टीवेरिएट में, जिसको कहा जाता है इंटरडिपेंडेंस टेक्निक्स। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन आपका डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऐसा नहीं होता है, इसमें हम लोग ये कुछ टेस्ट करते हैं, एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस जिसको ईएफए कहते हैं, आपको सुन के शायद मालूम होगा, जिसको पीसीए भी कहते हैं, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। उसके बाद क्लस्टर एनालिसिस, बाद में सीएफ है, कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस, मल्टी डायमेंशनल स्केलिंग जिसको एमडीएस कहते हैं, और इसी में फिर करस्पॉन्डेंस एनालिसिस जिसको सीए, और इसी में फिर मल्टीपल करस्पॉन्डेंस एनालिसिस, ये सब टेक्निक्स आती है। तो देखते हैं ऑर्गेनाइजर जब कभी भी एडवांस लेवल का वर्कशॉप प्लान करेंगे तो उस वक्त मैं ये सब पढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो हम लोग कंफाइन कर रहे हैं इस पर्टिकुलर वर्कशॉप में यूनिवेरिएट और बायवेरिएट एनालिसिस, और एक हाली हम लोग जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है नॉन पैरामेट्रिक भी करेंगे। तो अभी बचा हुआ जो टाइम है लगभग 25 मिनट है हमारे पास, उसमें यूनिवेरिएट एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे मैंने बताया आपको, आपके पास एक ग्रुप या फिर एक ही वेरिएबल है, उसका आपको एनालिसिस करना है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग करना है, तो हम लोग यूनिवेरिएट एनालिसिस करते हैं। इसमें क्राइटेरिया ये है कि आपके पास पॉपुलेशन का पैरामीटर, जनरली वी कंपेयर इट विद सैंपल स्टैटिस्टिक्स। और पॉपुलेशन का पैरामीटर यानी क्या, हम लोग बात कर रहे हैं परसेंटेज और मीन की। तो यहाँ पे हम लोग परसेंटेज वाली टेस्ट तो कर नहीं रहे जेड टेस्ट, हम लोग यहाँ पे जो कर रहे हैं वो मीन बेस्ड टेस्ट, यानी क्या, आपके पास पॉपुलेशन का पैरामीटर यानी पॉपुलेशन का मीन जिसको हम म्यू कहते हैं, म्यू को कंपेयर कर रहे हैं हम लोग सैंपल स्टैटिस्टिक्स यानी क्या, सैंपल का मीन एक्स बार। इफ वी आर कंपेयरिंग म्यू विथ एक्स बार, देन वी टिपिकली परफॉर्म यूनिवेरिएट analysis and specifically univariate t-test for comparing means। समझने की कोशिश करते हैं यूनिवेरिएट वन सैंपल टी टेस्ट फॉर मीन क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। आपका सैंपल साइज स्मॉल हो या लार्ज हो, आप ये टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। हम कौन से टेस्ट की बात कर रहे हैं, यूनिवेरिएट टी टेस्ट फॉर मीन। तो रिक्वायरमेंट चेक कर रहे हैं कि ये टेस्ट कब परफॉर्म करेंगे,
तो आपका सैंपल साइज स्मॉल यानी लेस देन 30 हो या ग्रेटर देन इज इक्वल 30 हो, यानी आपका सैंपल 500 1000 जो भी है आप ये टेस्ट परफॉर्म कर सकते हो। उसके बाद और एक इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास एक नोन वैल्यू होनी चाहिए जिसको आप स्टैंडर्ड वैल्यू भी कह सकते हो, और पॉपुलेशन पैरामीटर जिसको म्यू कहा जाता है, ये आपके पास होना जरूरी है। और हम लोग इसको कंपेयर कर रहे हैं एक्स बार के साथ जो आपके पास होता ही है। आपका डेटा सीरीज है, एक वेरिएबल v1, उसका डेटा आपके पास है, उसका आपने मीन यहाँ पे निकाल दिया, ये तो हमारे पास होता ही है। और इसी का मीन बेस्ड स्टैंडर्ड डेविएशन आप देख रहे हैं, सैंपल मीन और सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन ये आपके पास है। और आपने जो वेरिएबल है, ये डेटा जो है आपका, ये मेट्रिक डेटा है, यानी क्या, ये न्यूमेरिकल डेटा है। एज यू कैन सी वेरिएबल इज मेजर्ड ऑन मेट्रिक स्केल। और एक रिक्वायरमेंट इसकी ये है कि हमारा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। ये डेटा it should be normally distributed, then and only then we'll be able to perform this particular test. This is the requirement. तो इन शॉर्ट कर क्या रहे हैं हम लोग यहाँ पे, we are actually comparing population mean with sample means we are comparing mu with x bar in this particular test। एक एग्जांपल लेंगे जिससे जो भी आपके डाउट्स होंगे वो शायद क्लियर हो जाएंगे। देखिए, इसमें मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपके पास दो वैल्यूज होनी चाहिए। एक है म्यू जो पॉपुलेशन का नॉन मीन है, और हम लोग कंपेयर कर रहे हैं इसको एक्स बार के साथ। अभी मारुति कार बोल रही है कि उनकी एक एक्स ब्रांड है कार का, वो 19 किलोमीटर पर लीटर माइलेज देती है। मुझे ये चेक करना है कि क्या सही में जो मारुति कार का एक्स ब्रांड है जो ये क्लेम कर रहे हैं, सही में क्या ये इतना माइलेज दे रही है। तो ये जो वैल्यू है ये नोन वैल्यू है, मैं इसको कह रहा हूं म्यू, एंड आई एम कंपेयरिंग इट विथ द ऑब्जर्व्ड वैल्यू। ऑब्जर्व्ड वैल्यू क्या होगी, मैं मारुति कार के एक्स ब्रांड के ट्रायल्स ले रहा हूँ। इफ सपोज मैंने 10 ट्रायल्स लिए, 1 2 3 अप टू 10, और हर बार पहली ट्रायल में कितना माइलेज आया वो यहाँ पे लिखा, दूसरे ट्रायल में कितना माइलेज आया यहाँ पे। लाइकवाइज मेरे पास ये मेट्रिक डेटा आ गया, इसका मैंने निकाला मीन, ओके, एवरेज माइलेज। तो ये हो गया हमारा एक्स बार। हमारे पास दो वैल्यूज है अभी, म्यू और एक्स बार। इसको आपको कंपेयर करना है, तो हम जो टेस्ट परफॉर्म करेंगे उसको यूनिवेरिएट की टी टेस्ट कहते हैं। और एक सिमिलर एग्जांपल, एमआरएफ टायर कह रहा है कि उनके टायर की लाइफ 80,000 किलोमीटर्स है, ये हो गया हमारा म्यू। और फिर इसकी मारुति टायर की, सॉरी, एमआरएफ टायर की हम लोग ट्रायल्स लेंगे और कितनी लाइफ आ रही है वो चेक करेंगे। आपकी सपोज मोबाइल की बैटरी क्लेम कर रही है कि इट विल लॉन्ग फॉर नॉन स्टॉप 49 आवर्स। इफ सपोज हाइपोथेटिकली आपकी मोबाइल की बैटरी जो बोल रही है कि ये 49 आवर्स तक इसका लाइफ है, उसके बाद आपको चार्ज करना होगा इसको। एंड वी जस्ट विश टू चेक कि सही में ये 49 आवर्स है क्या, इससे कम है या इससे ज्यादा है। तो आपकी मोबाइल की बैटरी का आप ट्रायल लेंगे जब तक वो पूरी एग्जॉस्ट नहीं होती, और आप मल्टीपल ट्रायल्स में ऑब्जर्वेशंस नोट कर रहे हो कि ट्रायल नंबर 1 में कितना बैटरी लाइफ था, 2 में कितना बैटरी लाइफ। लाइकवाइज हमारे सैंपल्स 25 बार हमने ट्रायल्स लिए, यहाँ पे आ जाएगा आपका मीन, और ये जो है ये है हमारा म्यू। वी आर कंपेयरिंग दिस विथ दिस, ओके। अभी आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो हमारे पास होता ही नहीं, हमारे सर्वे ऐसे थोड़ी ना होते हैं कि हम बैटरी का लाइफ चेक कर रहे हैं या किसी कार की हम लोग क्या बोलते हैं माइलेज चेक कर रहे हैं। हमारे सर्वे में तो ऐसा होता नहीं है। हमारे सर्वे में तो सर एटीट्यूड होता है, हमारे सर्वे में ईक्यू होता है, हमारे सर्वे में सेटिस्फैक्शन होता है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, इस प्रकार के अवेयरनेस के बारे में हम सर्वे कर रहे हैं। तो सर इस पर्टिकुलर केस में क्या हम ये टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, 100% आप ये टेस्ट परफॉर्म कर सकते हो। तो मैं सीधा आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा देता हूँ कि अगर आप इस तरीके के कंस्ट्रक्ट लिकर्ट स्केल के अगर आपने डेटा ऐसा जनरेट किया हुआ है तो इस पे ये टेस्ट कैसे परफॉर्म करेंगे। इसका नल हाइपोथेसिस का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जिसको हम कहते हैं देयर इज नो डिफरेंस या नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस भी आप लिख सकते हो। देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन मीन एंड सैंपल मीन। हम बोल रहे हैं कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन मीन एंड सैंपल मीन। अभी हम लोग जो बात कर रहे थे मारुति कार के एक्स ब्रांड के माइलेज की, वो था 19 किलोमीटर पर आवर। और इफ सपोज हमारा एवरेज आया मल्टीपल ट्रायल्स का, वो आया है इफ सपोज 17 किलोमीटर पर लीटर। हम लोग अभी ये चेक कर रहे हैं कि ये दो का जो डिफरेंस दिख रहा है क्या ये सिग्निफिकेंट है, क्या ये
मैटर करता है ये कंक्लूड करने के लिए कि मारुति कार जो माइलेज क्लेम कर रही है वो उतना नहीं दे रही है। इसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग। और इसका ही ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या बन जाएगा, आपको सिंपली ये जो स्टेटमेंट बनाया है इसमें से आपको नो ये शब्द निकाल देना है, बाकी जैसे कि वैसा। हम लोग बोल रहे हैं देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन मीन एंड सैंपल मीन। सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ दिस पर्टिकुलर टेस्ट। एक एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मेरे पास कंज्यूमर एटीट्यूड को लेके मैंने एक क्वेश्चन ऐसा बनाया है जिसमें मैंने 7 आइटम्स पूछे हैं। ऑनलाइन शॉपिंग को लेके कंज्यूमर एटीट्यूड मैं मेजर कर रहा हूँ। तो ये 7 स्टेटमेंट्स मैंने बना लिए और 7 स्टेटमेंट्स में मैं 5 पॉइंट पे डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ। स्ट्रांगली डिसएग्री, डिसएग्री, न्यूट्रल, एग्री, स्ट्रांगली एग्री। ओके, और मैं अभी ये टेस्ट परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी आपके एक रेस्पोंडेंट ने कुछ इस तरीके से टिक मार्क किया हुआ है, हाइपोथेटिकली मैं कर रहा हूँ। कुछ ऐसे टिक मार्क किए तो ऑब्वियसली यहाँ पे कोडिंग हमने किया है 1 2 3 4 5। ओके, और यहाँ पे आ गया कोडिंग 2 का, यहाँ पे 3 का, यहाँ पे 4 का, यहाँ 5, यहाँ 1, यहाँ आ गया 2 और यहाँ आ गया 3। इसकी टोटल कर लेंगे, 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9 + 1 10, 10 + 5 15, 15 + 2 17, 17 + 3 is 20। तो ये हो गया हमारे रेस्पोंडेंट नंबर 1 का स्कोर। इसी तरीके से मैंने स्कोर्स निकाले, आप देख सकते हो। रेस्पोंडेंट नंबर 1 का लिकर्ट स्कोर आया है 29, 2 का आया है 26। लाइक वाइज मेरा जो भी सैंपल साइज है यहाँ पे मैंने 50 का सैंपल साइज लिया है। ओके, और ये 50 के लिकर्ट के स्कोर मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है। अभी आप थोड़ा सा रिकॉल करेंगे टी टेस्ट परफॉर्म कब करते हैं, तो जब हमारे पास सिंगल वेरिएबल है, बिल्कुल वन वेरिएबल है, हमारे पास सैंपल का मीन है, हमारा डेटा मेट्रिक स्केल का है, न्यूमेरिक डेटा बिल्कुल है। तीसरी क्राइटेरिया क्या बोल रही थी, हमारे पास सैंपल का मीन होना चाहिए, हाँ बिल्कुल, इस सैंपल का मीन निकाल सकते हैं। और सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको स्मॉलेस्ट कहते हैं, हाँ बिल्कुल, इसी डेटा का इस बेसिस से मीन भी निकल जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकल जाएगा। और एक रिक्वायरमेंट क्या थी इस टेस्ट की, कि हमारे पास म्यू होना चाहिए। एक्स बार तो है, अभी म्यू क्या है इसमें वो समझा रहा हूं। ठीक है, इस पर्टिकुलर केस में म्यू क्या होगा, ये जो सेंट्रल पॉइंट है ये वाला न्यूट्रल वाला, न्यूट्रल इज अबाउट नाइदर डिसएग्री नॉर एग्री। ओके, यहाँ पे आप चेक करेंगे कि हर एक बंदा अगर यहाँ पे टिक मार्क कर रहा है, हर एक रेस्पोंडेंट, देयर इज वेरी पॉसिबिलिटी कि वो यहाँ पे टिक कर रहा है, तो ये बंदे का स्कोर कितना आएगा, लिकर्ट स्कोर 1 + 1 + 1 ऐसे 7 बार, तो ये स्कोर आएगा 7। अगर कोई एक बंदा सिर्फ यहाँ पे टिक कर रहा है हर आइटम को, तो स्कोर क्या आएगा, 7 7 जा ना 49। ओके, अगर वो यहाँ पे टिक मार्क कर रहा है हर एक आइटम को, तो इसका स्कोर आएगा 14, यहाँ पे आएगा 21 और यहाँ पे आएगा 28, और यहाँ पे 7 5 35 है, सॉरी इट्स 35। तो इस पर्टिकुलर टेस्ट में हमारा नल क्या बोल रहा है, नल इज H0 से डिनोट करते हैं, नल इज देयर द एटीट्यूड ऑफ कंज्यूमर इज न्यूट्रल। ये जो पॉइंट है ना सेंट्रल, हम लोग बोल रहे हैं कि एटीट्यूड इज न्यूट्रल, और हम लोग ये टेस्ट कर रहे हैं कि क्या कंज्यूमर का एटीट्यूड अनफेवरेबल है या फिर फेवरेबल है, और एज्यूम क्या कर रहे हैं, कंज्यूमर एटीट्यूड इज न्यूट्रल। ओके, ये हमारा नल है और इसको भी टेस्ट कर रहे हैं हम लोग। तो हमारा म्यू क्या हो जाएगा, ये सेंट्रल वैल्यू 21, म्यू इज 21। और एक्स बार कहां से आएगा, ये जो मीन जो भी होगा वो होगा हमारा एक्स बार, और म्यू होगा 21। अभी सब कुछ रेडी है, उससे पहले और एक रिक्वायरमेंट रह गई है, वो है हमारा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। उसके लिए हमको करना होगा टेस्ट ऑफ नॉर्मलिटी इस पर्टिकुलर डेटा की, कि इसका शेप ये ऐसा आ रहा है क्या, ये जो डेटा है चेक करते हैं। इसकी 2 मेथड्स हैं, तो यानी क्या, मैं आपको जो रिक्वायरमेंट्स है वो मैंने समझा दिए हैं। अभी एक लास्ट रिक्वायरमेंट थी, दिस डेटा शुड बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो वो पहले कर लेते हैं। ये देखिए, ये नल है हमारा, द कंज्यूमर एटीट्यूड टुवर्ड्स ऑनलाइन शॉपिंग इज नॉट फेवरेबल, या आप न्यूट्रल कह सकते हैं इसको। अभी टेस्ट ऑफ नॉर्मेलिटी कर रहे हैं हम लोग। इसमें 2 तरीके से टेस्ट ऑफ नॉर्मेलिटी होगी, एक तो आप हिस्टोग्राम बना लीजिए और उसमें नॉर्मल कर्व प्लॉट कर दीजिए, यानी क्या, इस तरीके से
आपका हिस्टोग्राम आएगा और ये प्लॉट हो जाएगा हमारा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है, कुछ इस प्रकार से हमारा हिस्टोग्राम बनेगा। तो ये एक विजुअल प्रेजेंटेशन की मेथड है जिससे पता चल जाता है डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं। तो पहले मैं ये करके दिखा रहा हूँ और फिर हम दो टेस्ट परफॉर्म करेंगे हाइपोथेसिस की, टेस्ट ऑफ नॉर्मलिटी जो है शैपिरो-विल्क टेस्ट और कोल्मोगोरोव-स्मिर्नोव टेस्ट। बात करते हैं हिस्टोग्राम की। पहले हिस्टोग्राम बना लेंगे। मेरे पास ये एक डेटा है जो अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था, और या फिर इसी कंज्यूमर एटीट्यूड का ही हम लोग करते हैं जो मेरे पास है ऑलरेडी डेटा। इसमें हम लोग एनालाइज में जाएंगे, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, फ्रीक्वेंसीज में जाएंगे और फ्रीक्वेंसीज में चार्ट्स में जाएंगे जो हमने पहले दिन किया था, याद होगा आपको शायद। और इसमें फिर हम हिस्टोग्राम का फंक्शन यूज करेंगे और यहाँ पे क्लिक करना है हमको, नॉर्मल कर्व ऑन हिस्टोग्राम, यानी हिस्टोग्राम भी आ जाएगा और नॉर्मल कर्व भी प्लॉट करके दे देगा हमको। इससे पता चल जाएगा कि हमारा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं, कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो मैं आपको परफॉर्म करके दिखा देता हूँ सीधा सीधा। डेटा शीट ओपन कर लेते हैं, यूनिवेरिएट टी टेस्ट फॉर मी, ये वाली नहीं करते हम लोग। हम लोग करेंगे कंज्यूमर एटीट्यूड वाले। ओके, मेरे पास ये कंज्यूमर एटीट्यूड है। ओके, CA। ओके, ये मेरा डेटा है कंज्यूमर एटीट्यूड को लेके, सैंपल साइज 50 का है मेरा। ओके, इस पे पहले टेस्ट ऑफ नॉर्मलिटी हिस्टोग्राम के थ्रू करेंगे, डिस्क्रिप्टिव स्टैट, फ्रीक्वेंसीज, उसके बाद इसको ट्रांसफर कर लेते हैं। उसके बाद आएगा शायद कुछ, जस्ट अ मिनट, एनालाइज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, एक्सप्लोर कंज्यूमर एटीट्यूड, प्लॉट्स। मैं एक्सप्लोर क्यों कर रहा हूँ, फ्रीक्वेंसीज में जाना है। एनालाइज डिस्क्रिप्टिव स्टैट, फ्रीक्वेंसीज, कंज्यूमर एटीट्यूड, चार्ट्स और हिस्टोग्राम, शो नॉर्मल को, and I will press continue and then press OK. So as you can see, this is my histogram। और इससे क्या पता चल रहा है, थोड़ा सा पिकेडनेस है यहाँ पे इस तरफ, बाकी अदरवाइज तो डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लग रहा है। तो विजुअल प्रेजेंटेशन से क्या होता है, अंदाजा आ जाता है कि डेटा का स्प्रेड कैसा है। इसने देखिए एसपीएसएस ने हमको ये नॉर्मल कर्व भी प्लॉट करके दिए हैं। अभी बात करते हैं हम लोग टेस्टिंग की, जो है कोल्मोगोरोव-स्मिर्नोव टेस्ट और शैपिरो-विल्क टेस्ट। शैपिरो-विल्क टेस्ट कब करेंगे, जब हमारा डेटा का सैंपल साइज लेस देन 50 है, और कोल्मोगोरोव कब करेंगे, जब हमारा सैंपल साइज 50 से ऊपर है। ओके, अभी मैं ये टेस्ट आपको परफॉर्म करके दिखा देता हूँ। पहले स्क्रीनशॉट्स देख लेते हैं इसके, और फिर उसके बाद टी टेस्ट करेंगे ऑब्वियसली। सो नल हाइपोथेसिस हम कर रहे हैं, सॉरी हम लोग टेस्ट ऑफ नॉर्मलिटी कर रहे हैं शैपिरो-विल्क और कोल्मोगोरोव। इसके लिए नल हाइपोथेसिस का स्टैंडर्ड फॉर्मेट यही होता है, जब भी आप टेस्ट ऑफ नॉर्मलिटी करेंगे, द डेटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ऐसा ही नल होता है इसका। और हम चाहते हैं कि ये नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाए। तो चेक करते हैं एक बार परफॉर्म करके। यहाँ एनालाइज में जाएंगे, डिस्क्रिप्टिव स्टैट, एक्सप्लोर, उसके बाद फिर प्लॉट, और उसके बाद हिस्टोग्राम एंड देन नॉर्मलिटी प्लॉट कर लेते हैं इसका एक बार। ये है हमारा एटीट्यूड, एनालाइज, डिस्क्रिप्टिव स्टैट, एक्सप्लोर, एटीट्यूड, प्लॉट्स, हिस्टोग्राम, नॉर्मलिटी, प्लॉट्स विद टेस्ट। यहाँ से हमको ये मिलेगा कोल्मोगोरोव-स्मिर्नोव और शैपिरो-विल्क का आउटपुट। कंटिन्यू, ओके, लेट मी चेक द आउटपुट। यस, इट इज हियर, टेस्ट ऑफ नॉर्मलिटी। ओके, तो ये है आपका कोल्मोगोरोव-स्मिर्नोव का आउटपुट और ये है शैपिरो-विल्क का। तो हमारा सैंपल साइज एग्जैक्ट 50 का है, तो हम ये करेंगे शैपिरो-विल्क, क्योंकि रूल क्या कहता है, आपका शैपिरो-विल्क कब यूज करेंगे, जब सैंपल साइज लेस देन 50 है, और कोल्मोगोरोव-स्मिर्नोव कब करेंगे, जब ग्रेटर देन इज इक्वल टू 50 है। तो हमारा सैंपल साइज एग्जैक्ट 50 का है, तो हम ये टेस्ट का आउटपुट देखेंगे। और ये है आपकी पी वैल्यू, SIG मतलब सिग्निफिकेंट, ये इसको कहते हैं हम लोग पी वैल्यू।
तो इस तरफ देखना ही नहीं है शेपिरो विल, हमको सिर्फ कॉल्मोगोरस मॉर्नॉय ही देखना है। इसमें नल क्या है हमारा, डेटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, अभी आप देखेंगे इसमें पी वैल्यू कितनी आ रही है, 0.2, p value is 0.2 which is greater than 0.05 alpha, therefore null is accepted। null एक्सेप्ट हुआ है, यानी कि null में क्या बोला, डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हाँ तो ये एक्सेप्ट हुआ, मीन्स योर डेटा सीरीज इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी क्या, और एक कंडीशन हमने सेटिस्फाई कर ली है। अभी बात ये होती कि ये अगर रिजेक्ट हो गया होता तो क्या करेंगे, फिर हम लोगों को नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट परफॉर्म करनी होती है। तो यहाँ पे इंसिडेंटली आपका डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड आ चुका है, इसका मतलब है हम लोग अभी टी टेस्ट के लिए आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए अभी टी टेस्ट परफॉर्म करते हैं। इसके लिए सिंपल सा हम एनालाइज में जाएंगे, कंपेयर मींस और वन सैंपल टी टेस्ट, ये फंक्शंस है। शायद कोई तो भी अनम्यूटेड है, थोड़ा प्लीज म्यूट करेंगे, चेक करिए कोई तो भी अनम्यूटेड है शायद। ओके, अभी मैं टी टेस्ट परफॉर्म कर रहा हूं, इसके लिए जाएंगे हम वही एटीट्यूड वाला, एनालाइज, कंपेयर मींस और कंपेयर मींस वन सैंपल टी टेस्ट, यूनिवेरिएट की टी टेस्ट। इसमें कंज्यूमर एटीट्यूड को मैं यहाँ लेके जा रहा हूँ और हमारी टेस्ट वैल्यू है 21, ये कहाँ से आई मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। उसके बाद ऑप्शन में अगर आपको कॉन्फिडेंस लेवल चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं, यहाँ से 95 का 99 करना है तो कर सकते हैं, पर हम लोग तो 95 पे काम करेंगे डिफॉल्ट सेटिंग, और कुछ भी नहीं, आपको ओके प्रेस करना है। आउटपुट देखते हैं इसका, ये आउटपुट है, ये आपका सैंपल साइज है 50 का, इसका मीन आ गया है, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन आया है और स्टैंडर्ड एरर, इसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैट, जो हमको रिपोर्ट करना ही होता है इसका। ओके, और ये आउटपुट जो है ये है वन सैंपल टी टेस्ट का, जहां पे हमारी टेस्ट वैल्यू 21 लिख के आई है, हमारे वेरिएबल का टाइटल है कंज्यूमर एटीट्यूड, ये जो है इसको हम कहते हैं टेस्ट स्टैट, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स कहते हैं इसको, डीएफ को डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, उसके बाद एस आई जी टू टेल, यानी ये है पी वैल्यू, बाकी चीजें देखने की जरूरत नहीं, इंटरप्रेट करते हैं। पहले बात करते हैं नल की, हम क्या बोल रहे हैं नल में, द कंज्यूमर एटीट्यूड is neutral, means it is neither favorable nor unfavorable, it is consumer attitude is neutral। ओके, अभी बात करते हैं टेस्ट स्टैट। टेस्ट स्टैट में यहां होता है हमारा क्रिटिकल वैल्यू, और ये क्रिटिकल वैल्यू होती है इस पर्टिकुलर टेस्ट में 1.96, 95% कॉन्फिडेंस लेवल के लिए, जो टेबल से आई है 1.96, 95% कॉन्फिडेंस लेवल के लिए। और यहाँ पे हम मैपिंग कर रहे हैं टेस्ट स्टैट का, टेस्ट स्टैट कितना आ रहा है 8.266, ये कहाँ आएगा 1.96 के बहुत इस तरफ आएगा ना, यहाँ कहीं आएगा, ये जो है हमारा टी वैल्यू टेस्ट स्टैटिस्टिक्स जो है 8.26, ये जो एरिया है इसको कहते हैं एरिया ऑफ एक्सेप्टेंस, और ये जो है इसको हम कहते हैं एरिया ऑफ रिजेक्शन। इसका मतलब क्या है, हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो चुका है क्योंकि टी वैल्यू जो है हमारी ये रिजेक्शन लेवल में फॉल हो रही है, इसलिए नल इज रिजेक्टेड। और हमने क्या बोला है, नल इज द कंज्यूमर एटीट्यूड इज न्यूट्रल, और ये रिजेक्ट हुआ है, मींस एटीट्यूड न्यूट्रल नहीं है। न्यूट्रल नहीं है इसका मतलब क्या है, वो एक तो फेवरेबल है या अनफेवरेबल है, पता कैसे चलेगा, हमारा म्यू कितना है 21, और एक्स बार कितना है, ये यहाँ पे है एक्स बार जो आया है 20.5.58, जो 21 से ऊपर है, 21 इज न्यूट्रल, न्यूट्रल नहीं है, यानी ये जो डिफरेंस आ रहा है 4.58 का, ये सिग्निफिकेंट है ये कंक्लूड करने के लिए कि कंज्यूमर एटीट्यूड इज फेवरेबल टुवर्ड्स ऑनलाइन शॉपिंग। ये हो गया एक तरीका इसको इंटरप्रेट करने का। दूसरा तरीका है पी वैल्यू मेथड। पी वैल्यू कितनी आ रही है 0.000, पी वैल्यू इज
0.00, which is less than alpha 0.05. And if your p-value is less than alpha, then we say that our null hypothesis is rejected. और आप देखेंगे दोनों मेथड से, पी वैल्यू वाली मेथड हो या फिर टेस्ट स्टैट वाली मेथड हो, ये दोनों से रिजल्ट सेम ही आएंगे। यहां पे भी नल रिजेक्ट हुआ था ये मेथड से, और इस मेथड से भी नल रिजेक्ट हुआ है। यानी ऐसा कभी नहीं होगा कि पी वैल्यू मेथड से आपका रिजल्ट कुछ और आ रहा है और टेस्ट स्टैट वाली मेथड से रिजल्ट और आ रहा है। दोनों की दोनों मेथड से रिजल्ट सेम आते हैं। पी वैल्यू वाली मेथड ये ज्यादा पॉपुलर है आज की डेट में। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स वाली मेथड इतनी ज्यादा यूज नहीं होती है, कुछ लोग करते हैं, पर पी वैल्यू मेथड सबसे ज्यादा यूज होती है। पी स्टैंड्स फॉर प्रोबेबिलिटी वैल्यू, और ये फिशर सर जो है, आर ए फिशर, इन्होंने ये इन्वेंट की थी 1978 में। और अभी जो सॉफ्टवेयर्स वगैरह आए एसपीएसएस जैसे, इसकी वजह से पी वैल्यू कंप्यूटेशन बड़ा आसान हो चुका है, इसलिए इससे ही रिपोर्टिंग करते हैं। अदरवाइज ये टेस्ट स्टैटिस्टिक्स ये फॉर्मूला बेस्ड होता है, और ये पहले मैन्युअली किया जाता था। और ये जो क्रिटिकल वैल्यू यहाँ पे दी नहीं है, अब हम लोगों को तो ये समझना जरूरी है कि ये क्रिटिकल वैल्यू जो है 1.96 मैंने बताई, ये आपको निकालते आना चाहिए। तो इसलिए हम लोग इसको बहुत ज्यादा रेफर ना करते हुए पी वैल्यू मेथड को बहुत बार यूज करते हैं। तो दिस इज अबाउट योर यूनिवेरिएट टी टेस्ट एज यू कैन से। तो आज का सेशन थोड़ा सा समराइज करने की कोशिश करते हैं। आज हमने शुरुआत की थी क्रॉन्सबैक अल्फा से, फिर आज हमने फ्रेमवर्क देखा इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स का। इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में दो चीजें आती हैं, जिसमें हम कंप्यूटेशन ऑफ सी आई, कॉन्फिडेंस इंटरवल, और वो स्पेसेस में कैसे एस्टिमेशन करते हैं वो जानने की कोशिश की। उसके साथ साथ हमने आज इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स यानी क्या वो समझा है। और इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में चार बास्केट्स आती है, जिसमें यूनिवेरिएट, बाइवेरिएट, मल्टीवेरिएट और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट आती है, जिसमें से आज हमने यूनिवेरिएट की पहली टेस्ट वन सैंपल टी टेस्ट ये परफॉर्म की है। और उसी के साथ साथ हमने हिस्टोग्राम कैसे बनाते हैं स्पेसेस में वो भी देखा है। नॉर्मल को एसपीएसएस से कैसे प्लॉट करते हैं वो भी देखा है। और आज हमने टेस्ट ऑफ नॉर्मेलिटी में शेपिरो-विल्क टेस्ट और कोल्मोगोरोस-स्मिर्नोव टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं और इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं वो भी सीखा है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे सेशन। इफ यू आर हैविंग एनी क्वेरीज, आई विल बी वेरी हैप्पी टू टेक ऑन। यू मे unmute yourself if you are having any queries. Organizers, over to you, sir. ओके, अगर किसी को कोई क्वेरी है तो आज के सेशन के बारे में सर को पूछ सकते हैं। आशीष सर, चैट बॉक्स में कुछ दिख रहा है? नहीं सर, चैट बॉक्स पे क्वेरी तो नहीं है सर कोई। देव शर्मा has raised her hand, I believe. You may unmute yourself and you may ask your query. शर्मा जी। शायद वो नहीं है सर। ओके, काफी बढ़िया सेशन रहा सर आज का। और सभी इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक बहुत सिस्टमेटिकली आपने, अब तो ऑलवेज बहुत सिस्टमेटिकली रखते हैं सभी चीज़ें, तो भी आज भी और सिस्टमेटिकली ये सभी हमारे दिमाग में गया। पार्टिसिपेंट्स, किसी को कोई डाउट हो आज के सेशन में हाइपोथेसिस टेस्टिंग, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक के बारे में, तो सर को पूछ सकते हैं, सो दैट और भी रिवाइज हो जाएगा। कोई भी एरिया में कुछ डाउट हो तो। तो शायद सर डाउट नहीं। कैन वी वाइंड अप टुडे सेशन सर? sure sir, if participants are not having any doubts, so सभी एप्रिसिएशन मैसेज है सर आपके लिए, नाइस सेशन। और रियली सर आज का भी सेशन, और एक सिस्टमेटिक ढांचे में अपने सेशन चल रहे हैं सर। पहले दिन आपने एक
लिया दूसरे दिन, और तीसरे दिन कल डिस्क्रिप्टिव, आज इन्फ्रेंशियल, और इतना सिस्टमेटिक। सर ये सभी चीज़ें है वैसी इजी, बट कोई इतने सिंपल लैंग्वेज में एंड बहुत ही सिस्टमेटिक वे में ऐसे परोसते नहीं, इसलिए सब ये क्रिटिकल लगती है, एक दूसरे के साथ एक दूसरे कोलैप्स कर देते, इसलिए वो माइंड में बराबर जाती नहीं। बट आप ऑलवेज बहुत सिस्टमेटिक वे से प्रेजेंट करते हो, और आज भी ये इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक के सभी बास्केट्स आपने बहुत ही सिस्टमेटिक वे से प्रेजेंट किए। और सर ये स्पेसेस के साथ तो सिंगल क्लिक पे बहुत ही सिस्टमेटिकली निकल जाते, मुझे लगता है कि ये हम तो इजीली ये काम कर पाएंगे थोड़ा वर्क करके। थैंक यू वेरी मच सर, ऑन बिहाफ ऑफ MB पटेल कॉलेज साकोली एंड रणबीर सिंह भदौरिया कॉलेज उमरेड, I thank you. I say thank you to you for your outstanding today's session on inferential statistic, and हम कल मिलते हैं सर फोर्थ सेशन में। थैंक यू Sure, वेरी मच। pleasure is all mine, sir. So thank you, participants. See you in tomorrow's session. Sir, may I leave the meeting now?